لوکل زبانوں میں لینگویجز میں خطاب ہو جائے الگ بات ہے، جس طرح بنگلہ میں خطاب ہوتا ہے، اردو میں، لیکن عربی زبان میں ہر جگہ جمعہ اور عیدین میں خطبہ ہونا ضروری ہے، تاکہ دنیا جان لے کہ میں جس جگہ بھی رہوں مگر میرا مرکز مکہ مدینہ ہے، میری زبان کوئی بھی رہے مگر میری جنت کی زبان عربی زبان ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام قرآن کریم عربی میں، رسول پاک کا کلام احادیث کی صورت میں عربی زبان میں، اور قرآن اور احادیث کی جو تشریحات ہیں، تفسیر اور تشریح، وہ غالباً 90% جتنی بھی کتابیں ہیں پڑھی سب عربی زبان میں، اور آج کل اسی عربی زبان کو اپنی مقامی زبانوں میں پھیلانے کے لیے اس کے ترجمے لوکل زبان میں ہو گئے۔ تو اگرچہ بہت سارے لوگ اردو ہارڈ نہیں سمجھتے ہیں، مگر میں کوشش کروں گا کہ بالکل سمپل، سادہ اور سرل بھاشا استعمال کروں، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آنے والا خطیب اسٹیج پر آ کے چیخ چلا بھی سکتا ہے، ہاتھ اور پاؤں نچا بھی سکتے ہیں، اور کرتا اور کرسی کو پھاڑ اور توڑ بھی سکتے ہیں۔ پہلے ایسا بھی ہوتا تھا، لوگ یہ کہتے تھے ارے کرسی توڑ مقرر آیا ہے، تو چونکہ اس قدر ہاتھ مارتے تھے کرسی پہ تو کمزور کرسی کی خیریت نہیں رہتی تھی، اور وہ خود اس قدر جذبے اور جلال میں آ جاتے تھے کہ اپنے کپڑے ہی پھاڑ لیتے تھے۔ ایک شخص مجھ سے کہا کہ کیا حضرت غضب کی تقریر اس مولانا کی تھی، صاحب وہ اپنا بنیان تک پھاڑ ڈالا، اندر میں جو گنجی ہے اس کو بھی پھاڑ ڈالا اس نے۔ تو چلیے، وہ ان کا اپنا ایک جذبہ تھا، سینٹیمنٹ تھا، مگر میں یہ چاہوں گا کہ آج نہ کرسی توڑوں نہ کپڑا پھاڑوں، بلکہ ہماری فکر، ہمارا پیغام آپ تک پہنچے، اور میری کوشش رہے گی کہ بالکل اسی طرح جس طرح ابھی آپ سن رہے ہیں، اسی طرح 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے جب تک آپ کا دل چاہے اس وقت تک آپ بیٹھے رہیں، اس فقیر کی گفتگو سماعت کریں۔ اب میرے بعد مولانا سخاوت برکاتی صاحب ایک بڑے اچھے زبردست خطیب کلکتہ سے آئے، آپ کی راجدھانی سے آئے، تو وہی بہت عمدہ خطاب کرتے ہیں، ان کی بھی تقریر سنائیں گے۔ کل پوری رات آپ نے مشاعرہ سنا، آج پوری رات تقریر سننی ہے، سبحان اللہ، سنیں گے آپ؟ پوری رات سے مطلب یہ نہیں کہ صبح فجر کی اذان تک، جب تک چل سکے، اور پھر پوری رات بیان ہو کوئی ضروری نہیں ہے، 12 بجے رات تک ہی تقریر ہو، پھر لوگ سو جائیں 4 گھنٹے، پھر فجر کی نماز پڑھیں، اپنے کام میں لگ جائیں، اور اس طرح اگر ہر رات جلسے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اب ایک رات پوری رات جاگ گئے اور 4 رات لگ گئی اس نیند کی کمی پوری کرنے کے لیے، چھتی پڑتی میں نماز غائب ہو گئی، ایسا نہیں۔ اور پھر ایک دن سن لیا، اب 1 مہینے تک جلسہ میں نہ جانے کی قسم کھا لیا، اب نہیں جانا۔ اتنا جان لیں کہ چہب یہ چمڑی کی زبان ہے، جس کے من میں جو آئے وہ بولتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی دنیا ہے، اس دنیا میں چند دن کے لیے انسان کو بھیجا گیا، اور انسان کو آزادی دی گئی ہے، جیسے جینا ہے جی لو، لیکن مرنے کے بعد تم کو رب کے پاس جانا ہے، وہاں حساب و کتاب دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ 50 60 70 سال انتہائی کڑی نگرانی میں میرے گزر گئے۔ اللہ نے زمین کو CC کیمرہ کی طرف میری ایکٹیویٹیز کو نقل کرنے کے لیے بنا دیا۔ میں جہاں بھی رہوں لوگوں سے میں چھپ سکتا ہوں، باپ ماں سے چھپ سکتا ہوں، اپنے عالم، پولیس، جج سے چھپ سکتا ہوں، لیکن اللہ نے کی کیاری کی طرف، والدین کی خدمت کی طرف، علماء سے ملاقات کی طرف، یا پھر سنیما ہال کی طرف، جوا کے اڈے کی طرف، شراب کی بھٹی کی طرف، جھوٹ اور جوا کی محفل کی طرف، کہاں اس کو لے جایا گیا؟ کیونکہ یہ تو حکم کا غلام ہے، فیصلہ تو یہاں سے ہوتا ہے، جیسا ڈیسیزن آپ لیں اسی طرف پاؤں کرنے کو تیار ہے۔
पाँव को बोलेंगे चलो मस्जिद, पाँव तैयार है। पाँव को बोलेंगे चलो आज पीर साहब और आलिम साहब से मिलने के लिए, पाँव तैयार है। चलो आज जलसे की महफिल में सरकार की सीरत सुनेंगे, पाँव तैयार है। आप बोलेंगे चलो आज शराब पीने के लिए, पाँव तैयार है। बोलेंगे आप सिनेमा हॉल चलो, पाँव तैयार है। तो ये पाँव आप जिस तरह से इसको डिक्टेट करेंगे उस तरह से पाँव अपना काम करता है। क़यामत के दिन ये पाँव सारी गवाही दे देगा, आपके विरोध में गवाही देगा, इलाही इन्होंने मुझको फला फला जगह ले गया। ये ज़मीन गवाही देगी कि इस पर बैठकर जहां अल्लाह का जिक्र सुना गया, जहां रसूल पाक की बात सुनी गई, जहां कुरान करीम की तिलावत सुनी गई, जहां मजहब इस्लाम के अहकामात का चर्चा सुना गया, उस जगह की ज़मीन गवाही देगी कि इलाही मेरी पीठ पर बैठकर तेरे फला फला बंदों ने तेरा जिक्र किया था। सुभान। अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, क़यामत के दिन आप कुछ नहीं करेंगे, यह ज़मीन बोलेगी कि मुझ पर बैठ के इन्होंने 4 घंटे दीन की बात सुनी। सुभान अल्लाह। और इसी ज़मीन पर बैठकर अगर आपने ग़ीबत की महफिल सजाई, ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, ये मौलाना ऐसा, वो पीर ऐसा, ये मदरसा ऐसा, उस मस्जिद का मतवली ऐसा, वो नेता ऐसा, ये समाज का ज़मींदार ऐसा, यानी सब की पोटली लेके आप बैठ गए। अपना खाना पीने की फिक्र तो नहीं, तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या पढ़ेंगे, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा, उनका फ्यूचर कितना डार्क होगा, कुछ नहीं। ये ऐसा है वो ऐसा है, दूसरों के पीछे पड़ा है। और 1-2 घंटे तक ग़ीबत की महफिल सजानी है। कहाँ पे? चाय की दुकान पे। इधर चाय की चुस्की भी लेनी है, उधर मज़े ले लेकर बुराई में बयान करनी है। वो ऐसा है वो ऐसा है, चाय की चुस्की लेनी है, बीड़ी भी पीनी है, इधर से धुआं भी निकालना है, और फिर उधर से ग़ीबत और चुगलखोरी का भी धुआं निकलना है। ये ऐसा है तो वो ऐसा है, वो ऐसा है वो ऐसा है, यानी लोगों को उसी में लीन देखा जाता है, उसी में मुलविस रहते हैं। यह ज़मीन गवाही देगी इलाही 1 घंटे बैठकर इन्होंने ज़िना से ज़्यादा जो सख्त गुनाह है ग़ीबत, अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, ग़ीबत ज़िना से ज़्यादा हार्ड गुनाह। इस गुनाह में आपसे कई गुना ज़्यादा हमारी माँ बहन बेटियां गई थी, आपसे 10 गुना ज़्यादा, क्योंकि आपको तो दुकान भी चलाना है, नौकरी भी करनी, हल भी चलाना, सामान भी लाना, दुकान भी लगाना है, घर का सारा कामकाज करना है, गैस भरवाना है, जलावन लाना है, गोश्त मछली लाना है, सब्जी लाना है, साफ कोयला लाना है, चावल दाल, सारा काम आपके ज़िम्मे है। उनको रानी बन के सिर्फ करना है, पकाना है, खाना है और खिलाना है। आप फिर उससे फुर्सत पाने के बाद ग़ीबत की महफिल सजानी, ग़ीबत की महफिल सजानी, सिर्फ बोलना है। जैसे अभी दिन की गुफ्तगू हो रही है, आप लोग चुपचाप सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह सिर्फ कहते हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। उधर वहाँ मछली मार्केट है, मछली मार्केट बंगाल का बहुत मशहूर है, मालूम है। 5 आदमी रहे तो इतना हंगामा होता है, जैसे 5 लाख आदमी वहाँ जमा है। और बंगाल की मछली तो पूरे इंडिया में सप्लाई होती है। हमारे बिहार में बंगाल की मछली लोग खाते हैं वहाँ पे। सुबह सवेरे 2-4, 10-20 लारी उसमें सा वो मछली, उसको पैर से खिलाने वाला आदमी बैठा रहता ऊपर में, हिलाता रहता था कि वहाँ जब जाए तो बिल्कुल जिंदा सौरी है, तो कबई है, तो साहब सिंघी है, तो ये है वो सब। कहाँ से? बंगाल से। बंगाल से ही बिहार आबाद है, बिहार की का किचन आबाद है। अब वो लोग 5 लोग रहते हैं, 5 लाख की तरह आवाज़ करते हैं बाजार में, इतना इतना इतना। ये मछली मार्केट यहाँ सजी। हम लोग इधर जन्नत की बात कर रहे हैं, उधर वहाँ वो अपनी महफिल सजाए हुए, उनकी महफिल अपनी। वहाँ एक हमारे उस्ताद थे, आज से 25 साल पहले, वो बोलते थे एक शरीयत है, एक तौरेत है, हाँ वो कहते थे एक कुरान है, एक इंजील है, एक ज़बूर है, एक तौरेत है, ये 4 है, और एक औरत है, एक औरत, यानी उसको इंजील और ज़बूर और कुरान से मतलब नहीं है। शादी ब्याह में ये कपड़ा पीले रंग का लाना होगा, ये ज़बूर में है कि इंजील में, कुरान में का कुछ नहीं, ये औरतों का मसला है ये, यानी वो औरत है, चुप रहे। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि मेरी माँ बहन बेटियाँ जलसे में आई हैं, वो नहीं आती ठीक है,
आ गई हैं तो सिर्फ 2 घंटे कुछ न बोले, वो चुप रहे, सिर्फ सुनना है मौलाना क्या बोल रहा है, वो सुने, कुछ न बोले। अगर 2 घंटे जबान पे ताला लगा के बैठ गई तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारा घर जन्नत बन जाएगा। सुभान अल्लाह। चूंकि यहाँ 2 घंटे की प्रैक्टिस होगी चुप रहने की, और इसी को अपने घर में ले जाके प्रैक्टिकल करेंगी। शौहर के सामने चुप रहें, उनका चुप रहना 50 करोड़ रुपए कमाने से बेहतर है। वो सिर्फ चुप रहे, वो अब कुछ नहीं करें, घर जन्नत बन जाएगा। तलाक के जो वाकयात हो रहे हैं 90% उसमें कमी आ जाएगी अगर मेरी माँ बहन बेटियां चुप रहे। ये जो लत्तम और जुत्तम है, बाहर 8 घंटे बाहर था दुकान में मर्द, दोस्तों से मिलना जुलना, सामान बेचना, ग्राहक से मिलना, दिल बहल रहा था। घर में जहां आया अब साहब तलवे का गुस्सा सर पे आ गया। जो घर में आने के बाद अब वो इनका गम क्या दूर करेगी, वो मुंह लटका के मेरी माँ बहन की शिकायत लेके आ गई, तुम्हारी माँ ऐसी बोली, तुम्हारी बहन ऐसी बोली, तुम्हारा वो फलाना ऐसी बोली। अरे ये 8 घंटे दुकान में थक चूर होकर के घर आए हैं ताकि कम से कम ये मुस्कुरा करके मेरा गम दूर करे, ये और अलग से गम की टुकड़ी डाल रही है। अच्छी औरत की पहचान हदीस में बताई गई है। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, सबके मालिक व मुख्तार मौला, जिनकी गाइडलाइंस में सारी दुनिया चल रही है। इस फितनो फसाद के ज़माने में भी किसी दूसरे का रूल काम नहीं आ रहा है, काम मुस्तफ़ा का कानून आ रहा। नहीं देखा आपने, अभी 2 साल से कोरोना काल चल रहा। कोरोना काल में 1 साल तक तो साइंसदानों का की आंख से आंसू के कतरे निकल गए, सर दीवार से टकरा के रात दिन बैठे हुए। कोरोना की दवाई कहां से आए, नहीं आ पाई। अब झूठ एक कहानी गढ़ करके कि कोरोना की वैक्सीन आ गई, ये कहानी गढ़ लिया गया, पूरी दुनिया में करोड़ों आदमी को वैक्सीन लगा दिया गया। और मालूम है जब वैक्सीन लग गया, टीका लग गया, तो फिर हाथ धोते का क्या मतलब है? जब टीका डबल डोज लग गया फिर हाथ धोने का क्या मतलब? लेकिन आज भी अनाउंसमेंट होता है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, उससे बचने के लिए डबल डोज वैक्सीन लगा लीजिए, और उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहन के रखिए। इसका मतलब है कि वो वैक्सीन दिल बहलाने का एक जरिया है, दवा नहीं आई। अगर दवाई आती तो क्यों बोलता कि हाथ धोते रहिए? अगर दवाई आ भी गई है तो 2 साल के बाद आई है। ये 2 साल तक सारे वैज्ञानिक रोते रहे, सर पटकते रहे, और वैक्सीन आने के बाद भी हाथ धोते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम साइंसदानों और वैज्ञानिकों को उनकी औकात याद दिला दी कि तुमने कल तक मेरे महबूब के कानून का मजाक उड़ाया था। मेरे पैगंबर ने कहा था कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी, नमाज से पहले वुजू करना, वुजू में सबसे पहले हाथ धोना, कुल्ली करनी है, नाक में पानी डालना। तुमने मजाक उड़ाया, कहा कि डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज लाइफ, पानी को बर्बाद मत करो, पानी जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल को नष्ट मत करो। अरे जल ही जीवन है तो जिसने जीवन दिया है उसी की इबादत करने के लिए तो जल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उस रब की इबादत के लिए अगर सारा समंदर अगर वजू में खत्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने वो जल दिया है उसी की इबादत के लिए जल का इस्तेमाल हो रहा है। हम उसको हाथ धो रहे हैं, ये कह रहा है कि जल जीवन है, पानी मत बहाइए। क्या करें, क्या करें? जब पानी मत बहाइए, लेकिन आज सारी दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक के वैज्ञानिक कहते हैं लगातार हाथ धोते रहिए, लगातार हाथ धोते रहिए, लगातार हाथ धोते रहिए। इसका मतलब ये निकला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन साइंसदानों की जबान से हाथ धोने की वकालत करवा के बता दिया, चाहे 1000 तरक्की करो और तरक्की करते हुए साइंस की चोटी पे पहुंच जाओ, लेकिन तरीका वही कारआमद है जो मुस्तफा ने अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा
یہ صرف اسلام کے قانون کی ہماگیریت کو ثابت کرنے کے لیے اس سائنس وگیان کے زمانے میں ان ویگیانکوں کے منہ سے کہلوایا جا رہا ہے جان بچانی ہے، کورونا سے بچنا ہے تو ہاتھ دھوتے رہیے۔ تو ہم کہتے ہیں ویگیانکوں نے آج ہاتھ دھونے کی بات کہی، قربان مصطفیٰ جان رحمت پہ جس نے 1500 سال پہلے وضو کو نماز کے لیے فرض قرار دے کر کے ہاتھ دھونے کو لازم قرار دیا تاکہ جنت بھی ملے گی اور اگر کبھی کورونا آ گیا تو اسی ہاتھ دھونے سے نجات بھی مل جائے گی۔ یعنی ایک کورونا ہی کیا، تمام تر پولوشن اور تمام تر جرسوں میں تمام تر کیڑوں سے، بیماریوں کے کیڑوں سے بچنے کا سب سے بڑا علاج ہے کہ ہاتھ دھوتے رہنا، چونکہ ہاتھ کے راستے سے جراثیم کیڑے اندر جاتے ہیں تو وضو ان راستوں کا محافظ ہے جن راستوں سے بیماری اندر داخل ہوتی ہے۔ اور اس پر ٹھہر کے اور بھی تھوڑی باتیں دماغ میں آ گئی، آپ نے چین سے سن لیا تو اس پر اور بھی ایک ڈیٹیل سے تبصرہ ہم کریں گے، وضو اور وضو کا ویگیانک بینیفٹ اور وضو کا جسمانی فائدہ، اس پر تبصرہ ہو سکتا ہے، کوئی وعدہ نہیں۔ اگر بات چھڑ گئی، آپ جم کے بیٹھ گئے، کوئی آدمی اٹھے نہیں بیچ سے، تو پھر انشاءاللہ اسی طرح بہت ساری باتیں آپ تک پہنچیں گی۔ اور اگر آپ اٹھنے بیٹھنے لگے، ظاہر کرنے لگے کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہا ہوں، تو میں بھی اپنی معلومات کی پٹی سمیٹ کر کے چلا جاؤں گا کہ کل مجھ کو دوسری جگہ بولنا ہے، اور پھر پرسوں کی دوسری جگہ بولنا ہے، ترسوں میں بولنا ہے، ابھی لگاتار بولتے رہنا ہے۔ 15 دن کے بعد 17 دن کے بعد کل بہار میں گھسے تھے، کل بہار میں تقریر کی اور آج بنگال میں گھس گئے، اور اس کے بنگال کے بعد پھر ابھی بہار میں کل گھسیں گے، نہیں کل بھی بنگال ہی میں ہے، پھر اس کے بعد پرسوں بھی بنگال ہی میں ہے، پھر 28 کو جھارکھنڈ گھسیں گے، 29 کو بہار ہوتے ہوئے حیدرآباد جائیں گے۔ یعنی یہ ماہ ربیع النور ہے، اس موسم بہارا میں سب کو ہریالی مل رہی ہے، جو بیچارہ خطیب 2 سال سے بیٹھا ہوا تھا اس کی بھی چاندنی ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے، اس ماہ ربیع النور سے سب کا دل مسکرا رہا ہے، سب کے چہرے مسکرا رہے ہیں، سب کا گھر مسکرا رہا ہے۔ جب آپ سرکار کی یاد منائیں گے تو محفل آج مسکرا رہی ہے، سال بھر تک آپ کا گھر مسکرا رہا ہے۔ جس سال سب سے زیادہ میلاد کی محفل ہوتی ہے اس سال سب سے زیادہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ جس سال سب سے زیادہ مصطفیٰ کی یاد میں جلوس نکالے جاتے ہیں اس سال سب سے زیادہ دانوں میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ ہم نہیں ہوتے اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، زمین نہیں بنتی اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، آسمان نہیں ہوتا مصطفیٰ نہ ہوتے، جمعہ کہاں سے ملتا، عید کہاں سے ملتی، بقرعید کہاں سے ملتی، رمضان کہاں سے ملتا، عورتوں کا حجاب کہاں سے ملتا، مردوں کے چہرے کی داڑھیاں کہاں سے ملتی، سروں کی ٹوپیوں کی بہاریں کہاں سے ملتی، مسجدوں کی میناروں سے صدائے توحید کہاں سے گونجتی، جو ساری دنیا میں ایک ہنگامہ ہے۔ عورتوں کا نقاب دیکھ کر بے شمار کرسچنوں کی عورتیں کلمہ پڑھ کے مومن ہو رہی ہیں، اس لیے کہ جو چڈی پہنتی ہے، جو شارٹس پہنتی ہے، جو صرف بریشیر پہنتی ہے، جو ننگی رہتی ہے، لباس پہننے کے بعد بھی ننگی، وہ جو مسلمان بیٹیوں کے نقاب اور حجاب سر سے لے کے پاؤں تک ویل ان کو دیکھتی ہیں تو دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہیں۔ کس نے ان سے کہا ہے اپنے شرم کی ساری چیزوں کو چھپانا؟ مذہب اسلام کی عورتیں حجاب پہننے کے بعد جب اتنی خوبصورت ہیں تو جن عورتوں کی نقل یہ کرتی ہیں وہ فاطمہ الزہرا کتنی خوبصورت ہے۔ حجاب اور نقاب دیکھ کے یہودیوں کی بیٹیاں، نصرانیوں کی بیٹیاں، مشرکوں کی بیٹیاں کلمہ پڑھ کے مومن ہو رہی ہیں۔ رمضان کے دن میں جب افطار کے وقت میں امیر غریب کالا گورا سب بیٹھ کے افطار کرتا ہے، مسجدوں میں اپنے خانقاہوں میں اپنے گھروں میں امیر غریب سب آدمی دوسروں کو دینا چاہتا ہے۔ جو کل تک بخیل کنجوس تھا آج افطار کر کے ویٹ کر رہا ہے کوئی روزے دار آئے تو میں کھلا دوں، میرے پڑوس میں کوئی ہو تو اس کو دے دوں۔ اس سخاوت اور دریا دلی رمضان میں جو کنجوسی کا خاتمہ، سخاوت کا جو دریا بہتا ہے، اس کو دیکھ کر بے شمار کافر کلمہ پڑھ کے مومن ہو جاتا ہے۔ رمضان میں سحری کی وقت میں نغمے
या रसूलुल्लाह के नगमे, कुरान पाक की तिलावत, रमजान रात में 20 रकात नमाज तरावी, इफ्तार, तरावी, सहरी का सिस्टम, ये सब तिलावत कुरान का माहौल, मस्जिदों में 24 घंटे किसी न किसी का रह के तिलावत करना, इबादत करना, रमजान के आखिरी 10 दिनों में 2-4, 10-20 लोगों का सारी दुनिया से कट के मस्जिद में धरना देना, और साहब गरीबों मिस्किनों को ज़कात के लिए करोड़ों रुपए की तिजोरी खोल के पैसा बहा देना, खरबों रुपए उस महीने में गरीबों मिस्किनों में लुटा दिए जाते हैं। गरीबों में कपड़ों का बांटना, कंबल तकसीम करना, कपड़े बांटना, फितरे की रकम का निकालना, ये सारी बहारें देख कर कहते हैं कि जब इतना सिस्टम इतना खूबसूरत है इस्लाम का, तो जो सिस्टम देने वाला मोहम्मद अरबी है वो कितना खूबसूरत है। उससे रहा नहीं जाता, वो कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, कौन कहता है कि इस्लाम की तादाद, मानने वालों की तादाद घट रही है, मुस्तफा की शान घट रही है? गलत, झूठ है। अगर एक पंडित, अगर नरसिंहानंद सरस्वती, उसने अगर नबी की तौहीन की, तो वो लुच्चा, लफंगा, जाहिल दी ग्रेट एक आदमी बोला, उसकी बात पे ध्यान नहीं देना। उसकी जो आदमी सारी जिंदगी एक छोटे से लोटिया के पानी से पाखाना लपेट लेता हो, जो सारी जिंदगी पाक नहीं रहता हो 1 घंटा के लिए, वो चला है पाकों के सरदार पे उंगली उठाने के लिए, वो चला है पैगंबर आज़म की शान में गुस्ताखी करने के लिए। उसका जवाब सलमान अज़हरी को नहीं देना चाहिए कि मुबाहिला कीजिए, आइए हम भी आग में कूदें। ये जो सर से लेके पैर तक नापाक ही नापाक है, उसको क्या दावत देना मुबाहिला? इन नापाकों की बात पे ना कान धरने का, ना उनकी बात सुनने का, इसलिए कि चंद सिक्के कमाने के लिए गलत बातें, झूठ का इस्तेमाल कर रहा है। और ये चाहे चीख चिल्ला के करिया और पूरा लंगोटा खोल के नंगा होके नाचे और बोले कि मैं इस्लाम मिटा दूंगा, मुसलमानों को भगा दूंगा, 2025 तक एक कलमा पढ़ने वाला नहीं छोड़ूंगा, मस्जिद को मैं वीरान कर दूंगा, इस्लाम के पैगंबर की मैं धज्जियां उड़ा दूंगा, माशाअल्लाह, ये हजार कुछ बोले, ये लंगोटा खोल के नाचें, गाएं और फिर ये उसी तरह गाते गाते मर जाएं। मगर ये बात सच है कि एक बंदा भी न घटेगा नहीं। आने वाले 10 साल में जो डेडलाइन यह देता है, अल्लाह चाहेगा कि 40 करोड़ 80 करोड़ की तादाद में बढ़े, और दुनिया भर में जो 150 करोड़ की आबादी है, आने वाले चंद साल के बाद या 200 करोड़ की आबादी में यह आबादी तब्दील होने वाली है। मोहम्मद अरबी का नाम मोहम्मद अकेला था, लेकिन आज 150 करोड़ लोगों के नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अब्दुल्लाह, मोहम्मद फला, मोहम्मद फला, मोहम्मद फला। ये इस बात की दलील है, ये 2-4 लुच्चे लफंगे नाचते रहेंगे, इस्लाम के खिलाफ बोलते रहेंगे, मुस्तफा को गाली देते रहेंगे, ये जहन्नम की आग में जलते रहेंगे और मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा, खतीब आज़म हिंदुस्तान। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इन लोगों की बातों पे कान धरने की जरूरत नहीं। कभी नहीं बोलना है कि अब ये ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, पता नहीं क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। नहीं, हम लोग कमज़ोर खुदा के मानने वाले नहीं हैं। मेरा रब कवी है, अजीज है, ताकतवर है। वो रब है, इतना ताकतवर है मेरा वो खुदा, जो बंदों को पानी की एक बूंद से पैदा किया और फिर इसको मार के इसका नामो निशान मिटा देता है। और इतना ताकतवर है खुदा कि पूरी दुनिया के लोगों को पैदा करना भी जानता है और 1 मिनट में जलजला देकर कई करोड़ को जमीन में दफन करना भी जानता है। इसलिए उस रब्बे कदीर से बंदा दुश्मनी नहीं मोल ले सकता। ये बंदा गलत बात बोल के अपनी ही आखिरत और दुनिया खराब कर सकता है। मेरा खुदा ताकतवर है, मेरे रब को किसी से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि दूसरा रब रहे तब ना अल्लाह को कोई खतरा हो। जैसे एक बादशाह है, दूसरा भी कोई बादशाह है, उसके पास फौज ज्यादा है, वो हम पर अटैक करके हमारी हुकूमत को छीन सकता है, तब ना हमको डर लगता है कि वो बादशाह हम पर अटैक कर देगा। जैसे इंडिया को डर लगता है कि चाइना हम पर अटैक कर देगा, इंडिया को डर लगता है कि पाकिस्तान हम पर अटैक कर देगा। क्यों डर लगता है? घबराओ मत, डरो मत कि पाकिस्तान अटैक कर देगा।
पाकिस्तान में 22 करोड़ मुसलमान है, हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमान है। सुभान अल्लाह। अरे कैसे अटैक करेगा वो पाकिस्तान? पाकिस्तान अटैक नहीं कर पाएगा हिंदुस्तान पे। हमारा हिंदुस्तान बहुत महान है। पाकिस्तान में कोई गरीब नवाज नहीं है, इंडिया में गरीब नवाज है। बेकार का दिमाग चाटता है कि मुसलमान पाकिस्तान का दलाल है, पाकिस्तान का दलाल है। माअज़ल्लाह, हजार बार माअज़ल्लाह। ये गलत बात, झूठ बात बोल के सिर्फ मुसलमानों को डिमोरलाइज करना चाहता है और दूसरे लोगों को बताना चाहता है कि तुम्हारा हिंदुस्तान है, इसका नहीं है। लगता है कि हम लोग कहीं से भीख मांग के हिंदुस्तान में आए हैं। 1200 साल से हमारे बाप दादा यहाँ रह रहे हैं। उनकी हमारी ज़मीनें, हमारे मकानात, हमारी खानकाहें, ये सारी चीज़ें इस बात की दलील है कि हम आज अचानक नहीं आए हैं। हम लोग तो बरस से यहाँ आए। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान को हमने सींचा है। हिंदुस्तान पहले छोटे छोटे राजाओं का मुल्क था। एक हमारे पूर्णिया ज़िला में जहाँ मेरा घर है, वहाँ 3-4 जगह पे राजा की बिल्डिंग आज तक मौजूद है। ये चंपानगर, ये श्रीनगर का राजा, गढ़वल्ली का राजा, यानी पहले राजाओं की हुकूमत थी। एक राजा के अधीन 2, 4, 5, 10, 20, 50 गांव रहते थे और फिर वो ज़मीनें सब ज़मीन का टैक्स राजा को देते थे। तो राजा के पास अपनी फौज होती थी, वही उसका हिंदुस्तान होता था। एक हिंदुस्तान में हजारों राजा थे। पूरा हिंदुस्तान जैसे टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। राजाओं का मुल्क हिंदुस्तान था। लेकिन किसने इस हिंदुस्तान को एक अजीम हिंदुस्तान बना दिया? शायद उनको मालूम नहीं होगा, चूंकि वो राजाओं का मुल्क इंडिया था। बेशुमार राजा यहाँ थे, सब राजा का अपना चलता था। ये राजा, वो राजा, फला राजा, मिदनापुर का राजा, मालदा का राजा, उधर सिलीगुड़ी का राजा, राजाओं की जोड़ी, मकान, जमीन सब उसी का था। हिंदुस्तान था नाम, मगर सब राजाओं का मुल्क था। यूनाइट इंडिया नहीं था। लेकिन कंधार से लेकर के बर्मा तक और उधर बंगाल की खाड़ी से लेकर गुजरात की वादी तक पूरे महान हिंदुस्तान, जिसमें श्रीलंका का हिस्सा, बर्मा का हिस्सा, नेपाल का हिस्सा, अफगानिस्तान का हिस्सा, जिसमें बांग्लादेश, जिसमें पाकिस्तान, ये अजीम विशाल भारत जिसको एक शक्ल दिया है हिंदुस्तान की, कोई दूसरा नहीं, मुस्तफा का गुलाम औरंगजेब ने ये शक्ल दिया। पूरे हिंदुस्तान को एक मुल्क, एक सल्तनत, एक राजधानी, पहले हजारों राजधानी थी, एक राजधानी दिल्ली अगर किसी ने दिया है हिंदुस्तान को, तो कलमा पढ़ने वालों ने दिया है। हिंदुस्तान हमारा है, हमने इसको सींचा है, हमारे बाप दादाओं ने सींचा है। पाकिस्तान से तुमको डर क्यों लगता है? क्यों बोलता है कि वो ये करेगा, वो करेगा? कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान में 22 करोड़ मुसलमान है, इंडिया में 40 करोड़ मुसलमान है। इसलिए से घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान को हम लोगों ने सींचा है, सींचते रहेंगे। डरने वरने की कोई बात नहीं है। आप मत घबराएं, मत कुछ बोलें, मैं नफरत की खेती ना करे कोई। मोहब्बत का दरख्त लगाए, मोहब्बत से रहें, मोहब्बत की बोली बोले। सब जैसे चेहरा अलग अलग, रंग अलग अलग, फिंगर प्रिंट सबका अलग अलग, कलर अलग, जबान अलग, मगर सारे लोग यहीं बस रहे हैं। फिंगर अलग है मगर सब एक समाज में रहते हैं। चेहरा सबका अलग है, एक समाज में रहते हैं। उसी तरह हिंदुस्तान एक महान मुल्क है। यहाँ सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं और सब अपने अपने हिसाब से काम करें। लाठी लेके कोई किसी को दबा करके, किसी को जबरदस्ती अपनी तरफ ना ले जाए। अब जो इस मजहब में सच्चाई होगी, जिस मजहब में हक़ानियत होगी, जिस मजहब में वास्तविकता होगी, उसकी तरफ दुनिया खींच के चली जाएगी। अब अगर सच की तरफ दुनिया जा रही है, अब कोई बोले कि नहीं उधर मत जाओ, झूठ की तरफ आओ। कोई पाकिस्तान की तरफ दुनिया जा रही है, अब बोले कि नहीं नहीं इधर शराब पीने की तरफ आओ। शराब की ताकत कमजोर है, शरबत की ताकत ज्यादा है। जुल्म कमजोर है, अदल ताकतवर है, अत्याचार कमजोर है, सदाचार बलवान है, शक्तिशाली है। तो तुम अपने हिसाब से काम कर। अगर इस्लाम ताकतवर है, इस्लाम बलवान है, इस्लाम हक़ानियत से लबरेज है और सारी दुनिया इसकी तरफ आ रही है, तो फिर तुम क्यों लड़ाई मोल ले रहा है? तुम्हें भी सपोर्ट करना चाहिए कि दुनिया जुल्म से बचे, इंसाफ के करीब आ जाए, अंधेरे से हटे, रोशनी के करीब आ जाए। तो जिस मजहब में सदाकत होगी, दुनिया को अपनी तरफ खींच लेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब महान है,
کوئی دوسرا خدا نہیں ہے کہ جو رب کو خطرہ ہو، میرے رب کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ تو رب کا جو پسندیدہ دین اسلام ہے اس کو بھی کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ رب کا جو پیارا محبوب محمد عربی علیہ السلام ہے ان کو بھی کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ رب کا جو کلام قرآن ہے اس کو بھی کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ میرا رب خطرے سے پاک ہے، میرا اسلام خطرے سے پاک ہے، میرے پیغمبر خطرے سے پاک ہے، میرا قرآن خطرے سے پاک ہے۔ اور جو رب پر، محمد عربی پر، قرآن پر، اسلام پر ایمان لے آئے اس کی ذات کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کمزوروں کو ہوتا ہے، طاقتور کو نہیں ہوتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مذہب اسلام۔ ہم اپنی طرف سے ظلم پہل نہیں کرتے، ہم اپنی طرف سے مار دھاڑ نہیں کرتے، ہم تو ظلم سہتے ہیں، ہم تو لوگوں کی اذیتیں سہتے ہیں، ہم تو سہنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، سہتے ہیں ہم، سہنا میرا کام ہے۔ وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں میں سہتا ہوں، وہ مجھے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں میں سہتا ہوں۔ اس کا ایک لچا لفنگا بولتا ہے سب کو بھگا دیں گے، ٹھیک سے رہنا، رہو ورنہ بھاگو پاکستان، ہم سہتے ہیں۔ وہ ہماری مسجدوں میں دھول پھینک دیتا، میں سہتا ہوں، میں سہنے کے لیے پیدا ہوں۔ چونکہ جو سہتا ہے زمانہ اسی کا ہوتا ہے، سہنے والے کے قدموں میں ہی ساری دنیا آ جاتی۔ آپ نے اگر نہیں سمجھا ہوگا تو بس میں ایک چیپٹر کھولتا ہوں اسلام کا، آقا دو جہاں علیہ السلام کی پوتر جیون کا، ان کی ہولی لائف کا ایک چیپٹر میں کھولتا ہوں۔ سرکار دو جہاں کے پاس اپنے محبوب کو پیغمبر آخر الزمان بنا کے بھیجا، سارے پیغمبروں کو الگ الگ معجزہ اور سارے معجزات کا جامع بنا کر پیغمبر آخر الزمان کو اللہ نے بھیجا۔ سارے پیغمبروں کے کمالات آقا علیہ السلام کی ذات گرامی میں جمع ہیں، سبوں کو الگ الگ معجزہ دیا گیا، حضور جامع معجزات بنا کے بھیج دیے گئے۔ اور سب سے بڑا معجزہ نبی محترم کا وہ قرآن کریم ہے جو 1400 سال کے بعد آج بھی وہ معجزہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ حضور نے سورج کو پلٹایا، یہ ایک معجزہ۔ معجزہ کہتے ہیں کہ جو عادت کے خلاف کام ہو، جو کام عام طور پر ہوتا نہیں، اللہ کے نبی کر دیں تو وہ معجزہ ہے، اللہ کے ولی کر دیں تو وہ کرامت ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر چاند سورج کو کوئی پلٹاتا ہے کیا؟ نہیں، کوئی پلٹاتا، لیکن اگر نبی پلٹاتا ہے تو معجزہ ہے۔ اگر کسی کوئی اللہ کا ولی اشارہ کر دے اور سورج پلٹ آئے تو کرامت ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے بارے میں آیا ہے، وہ بزرگ تھے، ایک گاؤں میں گئے، لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی، وہ مچھلی دریا سے مار کر چاہتے تھے کہ اس کو آگ میں بھون دیں، آگ کھا لیں۔ وہ کون تھے؟ وہ فقیر زاہد درویش قلندر حضرت حضور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے، علامہ روم علامہ کے پھر مرشد تھے۔ انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تو کہا اے سورج کیا دیکھتا ہے؟ ان لوگوں نے تو مہمان خدمت نہیں کی، تم ہی آ جاؤ میری مچھلی کو بھون جاؤ تاکہ میں کھا کے بھوک مٹاؤں۔ سورج آ گیا، مچھلی کو بھون دیا، واپس چلا گیا۔ وہ نبی نہیں تھے شمس تبریز، اللہ کے ولی تھے۔ ولی کے اشارے پہ جب سورج گھومتا ہو تو نبی کے اشارے پہ سورج کے گھومنے کا عالم کیا ہوگا؟ بس ایک چیپٹر میں کھولتا ہوں، سرکار دو جہاں کے پاس کتنے اختیارات موجود ہیں۔ ماں کی گود میں ہے مصطفیٰ، انگلی جدھر کر رہے ہیں ادھر چاند گھوم رہا ہے۔ کیا نور کا کھلونا، نور کا۔ سرکار ماں کی گود میں ہے، جھولے پہ جھول رہے ہیں اور انگلیاں جدھر اٹھ رہی ہیں، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ نبی نور، چاند بھی نور، نور کا کھلونا نور۔ اشارہ چاند کا کچھ مارا، سورج اشارہ کیا پلٹ آئے، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اشارہ کیا پہاڑ ہلنے لگا، سمندر میں راستے پیدا، سمندر نے مصطفیٰ نہیں مصطفیٰ کے غلام کے لیے اپنی چھاتی پہ راستہ دے دیا۔ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران جا رہے ہیں، اسلامی جھنڈا گاڑنے جا رہے ہیں، پیچھے سامنے سمندر ہے، اب کیا کریں؟ انہوں نے بسم اللہ پڑھا، اللہ کا نام لے کے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا۔ تو سارے گھوڑے کو ڈوب جانا چاہیے، نہیں، مصطفیٰ کا غلام تھا، سمندر نے راستہ دے دیا، ایسا راستہ دیا کہ گھوڑے کی ٹاپ تک پانی میں نہیں بھی۔
जैसे कोई धूल उड़ रही हो रेगिस्तान में, समंदर मुस्तफा के गुलाम का गुलाम। जनाब सफीना रास्ते से जा रहे हैं, काफिला दूर हो गया, रास्ता भूल गए, जंगल में दाखिल हो गए। अब जंगल शेरों का जंगल, जंगल का राजा शेर, और सामने दहाड़ता हुआ आ गया। मैं होता, आप होते तो वहीं पे पेशाब पाखाना हो जाता, मर जाते। शेर के हमला करने से पहले ही मर जाते। लेकिन रसूल पाक के गुलाम सहाबी थे, देखा शेर चिंघाड़ता हुआ आ रहा है तो वो भागे नहीं, माँ बाप नहीं की। माँ बाप वो करता है जो हम लोगों ऐसा कमजोर आदमी होता है, जो कपड़ा पहनने का मुकाबला, खाने का मुकाबला, बिल्डिंग का मुकाबला, बुलेट का मुकाबला, गलेमर का मुकाबला, सारी हीरो होंडा आल्टो का मुकाबला, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, साहब वो बलेनो, सुजुकी, स्विफ्ट, डिजायर, इसी का मुकाबला हो रहा है। ये आल्टो खरीद के लाया और सामने वाला फॉर्च्यूनर ले आई, आल्टो वाला भाग गया वहां से। ये 4 लाख वाला आल्टो क्या हैसियत है उसकी? अब फॉर्च्यूनर 25 लाख 30 लाख, अब सामने 1 करोड़ की कार वाला आ गया, ये फॉर्च्यूनर वाला गरीब बन के भाग गया वहां से। अब वो 1 करोड़ की कार है, अब मुकेश अंबानी की बीवी 100 करोड़ की कार अमेरिका से लिया है। अब कहाँ 100 करोड़, कहाँ 1 करोड़, इसलिए कार का मुकाबला करके नहीं शान दिखा पाएगा। 1 करोड़ की कार है तो 50 करोड़ की कार मौजूद है, मकान बनाकर मुकाबला नहीं कर पाएगा। 50 करोड़ का मकान है तो सामने 50 अरब का मकान मौजूद है। इसलिए कपड़ा, अगर घड़ी तो बनेगा टाइटर का 20,000 का, तो सामने वाला 10 लाख की घड़ी, राडो कंपनी घड़ी पहन लिया। अगर जूता तुमने रेड एंड चिप का पहना है तो दूसरा आदमी साहब वो खादिम का 1 लाख का जूता पहने हुआ है। इसलिए न जूता का मुकाबला, न घड़ी का मुकाबला, न गाड़ी का मुकाबला, न कपड़े का मुकाबला, न अंदर की ज्योति और मफ्ती और किलर के बनियान का मुकाबला, न साहब मोबाइल सैमसंग एप्पल आईफोन का मुकाबला नहीं। अगर आईफोन तुम्हारे पास 20,000 का है तो यहाँ 20 लाख का फोन मौजूद है, मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो क्यों वो गाड़ी छकड़ा, बुलेट, ग्लैमर, काम चलाने के लायक काम करो, मुकाबला मत करो। इसे मुकाबला करोगे कोई हद नहीं है उसकी, मर जाओ। आल्टो से मुकाबला करके ग्लैमर खरीद, साहब वो स्विफ्ट खरीदोगे वहां डिजायर वाला आ जाएगा। डिजायर छोड़ करके तुम खरीदो करेटा, तो करेटा खरीदोगे 18 लाख में, वहां सामने फॉर्च्यूनर वाला आ जाएगा। मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि कपड़े में दिमाग लगाने वाला, खाने में दिमाग लगाने वाला, गाड़ी छकड़े में दिमाग लगाने वाला, वो जलील और रुस्वा हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, मर जाएगा, मुकाबला कर नहीं पाएगा। दुनिया की चीजों की कोई हद नहीं है। यहाँ 10 भर सोना है, वहां 50 भर सोना सामने वाले के पास मौजूद है, मुकाबला नहीं हो पाएगा। 50 लाख की 2 दुकान है, यहाँ 50 करोड़ की 50 दुकानें सामने मौजूद है आदमी की। मेरे पास 1 एकड़ जमीन में घर है, यहाँ 5 एकड़ में एक आदमी का घर है, वो मौजूद है, मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि खाने पीने, कपड़े और गाड़ी का मुकाबला मत कर, नहीं कर पाएगा। मुकाबला किरदार का कर ले, तकवा का कर ले, इज्जत का कर ले, आदाब अखलाक की जिंदगी का कर ले। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, मैं इशराक और तहज्जुद भी पढ़ूंगा। वो साहब दान खैरात करता है, 50 लाख मैं 1 लाख खैरात करूंगा। वो 4 उम्रा किया है, मैं 8 उम्रा करूंगा। वो हर महीने में खत्म कुरान करता है, 15 दिन में करूंगा। अखलाक का मुकाबला, तकवा का मुकाबला, दीनदारी का मुकाबला, तिलावत कुरान नमाज का मुकाबला, दीनी किताबों के मुताले का मुकाबला। अगर ये मुकाबला करेगा तो अल्लाह की मदद तेरे साथ होगी। फिर क्या होगा? इंसान तो इंसान, आसमान का फरिश्ता भी तुझसे मुसाफा करने तेरे घर में आ जाए। स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, उसी को रूहानियत कहते हैं, उसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। जब से हमारे पास तकवा जब था, ये काफिर डरते थे, मुझसे आंख मिला के बात नहीं कर पाते थे। ये अपने घर का फैसला मुझसे करवाते थे, ये अपने झगड़ों का फैसला मुझको बनाते थे। ये आकर के मेरे हाजी हज को से आता था, उनके पाँव को धो के पीते थे। मक्का मदीना से आ गया जब मेरे पास रूहानियत थी, जब मेरे पास किरदार था, जब मेरे पास रूहानी ताकत थी, बहुत बल था, बहुत इज्जत थी, बहुत ताकत थी। ये भी डरता था, इनके लोग भी डरते थे, शेर भी डरता था, जानवर डरता था, सांप डरता था, सूरज और चांद डरते थे, दुनिया के दूसरे और बदमज़हब वो सब डरते थे।
لیکن آج وہ ناپاک رہنے والا مجھ کو ڈراتا ہے، چوہا بھی ڈراتا ہے، بلی بھی ڈراتی ہے، شیر بھی ڈراتا ہے، سانپ بھی ڈراتا ہے، چھچندر بھی ڈراتا ہے، بندر جو دوڑتا ہے بسکٹ کھانے کے لیے، اس کو دیکھ کے میرا جوان چلا کے بھاگتا ہے۔ بندر ہے جس کو ہم لوگ بندر بولتے ہیں، وہ بندر میرے ہاتھ میں بسکٹ ہے، اگر وہ لپک یہ بھاگتا وہاں سے بھاگا۔ ابھی میں نے دیکھا ایک آدمی کو، وہ بیل آ رہا تھا، بیل کو دیکھ کر کے وہ بھاگ رہا۔ بتائیے بیل کتنا شریف جانور ہے۔ بیل بولتا ہے ایک بیل ہی بیل ہے، بیل کا مطلب شریف اور سیدھا۔ گدھا کا مطلب شریف اور سیدھا۔ گدھا کا مطلب ساری زندگی گدھا دھوبی کے پاس رہتا ہے اور اس کو گھاٹ پہ لے جاتا ہے۔ شام میں جب دھوبی لاتا ہے تو گدھا اپنے دھوبی کے گھر کا راستہ بھول جاتا ہے۔ ایک دن 2 دن تو دیکھے گا کتا تو ساری زندگی یاد رکھے گا، لیکن گدھا اتنا بھولا بالا ہوتا ہے کہ ڈیلی وہ آتا ہے مگر پھر بھی راستہ بھول جاتا ہے۔ 50 سال تک دھوبی کے پاس رہے تو بھی راستہ بھول جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں یہ پکا گدھا لگتا ہے، یعنی گدھے کی طرح بیوقوف لگتا ہے یہ، وہ گدھا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں بالکل سمجھ لیں کہ بلی، چھچندر، مگرمچھ، مکھی، چونٹی سب سے ڈرنے والے، سب سے آج ہم ڈرتے ہیں، لیکن کل مجھ سے سانپ ڈرتا تھا، شیر ڈرتا تھا، دنیا کی ساری مخالف قومیں ڈرتی تھی۔ میرا ایک بہادر 10 دن کا بھوکا رہتا تھا، لیکن اس کی تلواروں میں وہ غضب کی چمک ہوتی تھی کہ دشمنوں کا سینہ ہل جاتا تھا۔ ہم کسی آبادی میں قدم رکھ دیتے تھے، اگر کسی جنگل میں اپنا خیمہ گاڑنا چاہتے تھے تو اس جنگل کا سارا شیر، سارا سانپ جنگل خالی کر دیتا تھا کہ اب مصطفیٰ کا غلام یہاں خیمہ گاڑ کر رہے گا، مجھے جگہ خالی کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کیسا دین تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، اس وقت ان کے دل میں ہیبت تھی۔ لیکن جب سے میں نے بال رکھنا شروع کر دیا جوکر کی طرح، جب سے میں نے مرغ کا بال ہوتا ہے سر پہ کھوپا، چاروں طرف چھوٹا اور بیچ میں ایسے ہوتا ہے مرغ کا، اسی طرح بیچ میں بچہ بال رکھ رہا ہے، چاروں طرف مونڈا رہا ہے، اور اس بال کو ایسے گھسیڑ کے ادھر کر دیتا ہے اور ادھر سے گزر کے ادھر کر دیتا ہے۔ وہ سیلون کی دکان جا کے دیکھیں 50 تصویریں رہتی ہیں، کوئی ادھر سے گھما ہوا، کوئی ادھر سے گھما ہوا، کوئی چاروں طرف سے منڈا ہوا، کوئی بیچ سے منڈا ہوا، یعنی طرح طرح کا ڈیزائن دیکھ ایک عجیب سا لگتا ہے کہ صاحب بنمانوس بنانے کی دکان ہے یہ، اور اس میں میرے بچے جاتے ہیں اور بولتا ہے کہ یہ فوٹو جو ہے اسی فوٹو والا ڈیزائن مجھ کو بنا کے دے دو، اور جب وہاں سے ڈیزائن بنا کے آتا ہے تو پھر لگتا ہے جیسے کوئی جوکر آ گیا ہو، باہر سے کوئی میک اپ کر کے جوکر آ گیا۔ جب سے میرے بچے جوکر ہو گئے، جب سے میرے بچے وہ چست پینٹ پہن کے جوکر لگنے لگے، جب سے میرے بچے ماں باپ کا احترام کھو گئے، جب سے میرے بچے گٹ کا خور ہو گئے، تو کافروں کے دل میں جو میری ہیبت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب ہیبت کیسے رہے گی؟ ہم ان کی طرح بات رکھ رہے ہیں، ان کی طرح گٹکا کھا رہے ہیں، ان کی طرح سگریٹ پی رہے ہیں، ان کی طرح 24 گھنٹے موبائل چلا رہے ہیں، ان کی طرح گٹکا منہ میں گٹکا ہے، کان میں وائر پھنسا ہوا ایسے سر ہلا رہے ہیں، 1 گھنٹہ تو دکان بیٹھ کے سر ہلا رہے ہیں، یعنی کان میں وائر پھنسا ہوا ہے اور منہ میں گٹکا کا تھوک ہے، اور پھر ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل کو دیکھنا ہے اور ایسے ہی ہلانا ہے، اب منہ میں بند ہے، تھوک ہے، بولے گا کیا وہ؟ سلام بھی کرے تو وہ سلام کا جواب ہی نہیں دے سکتا ہے، بولتا ہے پھر جا کھا السلام ورحمۃ اللہ۔ پتہ نہیں کہاں سے کون سا نیچر کس ڈائی نے نظر لگا دی، کس قاتل نے نظر لگا دیا۔ جو بچہ بہادر تھا، جو جہاد کرتا، جو تلوار جن سے ڈرتی تھی، دشمن جن سے ڈرتا تھا، جن کے پاس وہ طاقت تھی کہ ایک بار گہری لمبی سانس لے تو سانپ کا دل جل جائے، شیر پاخانہ کر دے۔ ایسا نہیں کہ کوئی کہانی اور فکشن یا میتھولوجی ہم بیان کر رہے ہیں، کوئی کالپنک کہانی نہیں۔ اسی ہندوستان میں صحابی کی بات تو ہم بولنے جا رہے ہیں، بس صحابی سے پہلے ان کی بات میں کر دوں جب بات چھڑ گئی ہے۔ اسی ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا اورنگزیب عالم بھی تھے، اورنگزیب 6 مہینے میں حافظ قرآن بن گئے، اورنگزیب تہجد گزار بھی تھے۔ فتویٰ عالمگیری جو فقہ حنفی کی انسائکلوپیڈیا ہے اسی کے دور کی پیداوار ہے۔ 100 سے زائد علماء کو بیٹھا کر کے بورڈ انہوں نے فتویٰ عالمگیری قوم کے حوالے کیا۔ وہ تہجد گزار، فتویٰ عالمگیری کا مرتب، مؤلف، نماز پنجگانہ کا پابند، تہجد کی نماز پڑھنے والا، اتنا زبردست عالم حافظ کہ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو حافظ بنایا تو کہا جاؤ دادا کے کو سلام کر کے آؤ، اور کہنا کہ اب دادا جان میں حافظ بن گیا۔ جب شاہجہاں دادا کے پاس ہو گیا کہا دادا جان میں حافظ قرآن بن گیا، کہا تم حافظ بنے تمہارے باپ کو خوشی ہوئی،
میرا بیٹا حافظ بنتا تو مجھے زیادہ خوشی حاصل ہوتی. وہ پوتا آیا اپنے ابو کے پاس، اورنگزیب کے پاس، کہا دادا جان نے بولا کہ تو اپنے باپ کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے، تو حافظ بنا، تیرا باپ خوش ہے، اگر میرا بیٹا حافظ بنتا تو مجھے زیادہ خوشی حاصل ہوتی. اللہ سبحانہ. آج جو بیٹا کوئی کام نہیں کرتا، 10 سال لگ جاتے ہیں حفظ کرنے میں. لاک ڈاؤن میں 4 مہینے میں بہت سارے انجینئرنگ کے طالب علم پورا قرآن حفظ کر لیے. اور بہت سارا میرا مولوی بھائی وہ پورے 4 مہینے گٹکا کھاتا رہا، سورہ یاسین بھی نہیں یاد کر پایا، سورہ دخان بھی نہیں یاد کر پایا، اور صاحب سرکار کی 5 حدیث یاد نہیں کر پایا. لاک ڈاؤن ہے، جلسہ جلوس بند ہے، چلو 5 حدیث یاد کر لیتے ہیں، چلو سورہ یاسین جو ڈیلی پڑھے گا رات میں شہادت کی موت مرے گا اسی کو یاد کر لیتے ہیں، سورہ دخان جو ڈیلی رات کو پڑھے گا صبح 70,000 فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرے گا، چلو اسی کو زبانی یاد کر لیتے ہیں. سورہ ملک 30 آیت ہے، جو مومن یاد کرے گا سینے میں رکھے گا وہ عذاب قبر سے بچے گا، جو ڈیلی پڑھے گا چلو اسی کو یاد کر لیتے ہیں. نہیں، ڈیلی سجنا محفل سجانا گھر میں، وہ گٹکا رجنی گندھا پڑیا اور بیڑی سگریٹ، لاک ڈاؤن کا 4 مہینہ اسی طرح گزار دیا. ایک انجینئرنگ کالج کا طالب علم جو آن لائن پڑھائی کرتا تھا لاک ڈاؤن میں، اس نے موقع غنیمت جان کر کے کالج بند ہے تو 3 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا. اللہ حسن. اچھے لوگ نے اس 4 مہینے لاک ڈاؤن میں بہت اچھا کام کیا، کوئی قرآن یاد کر لیا، کوئی حدیث یاد کر لیا. اور جو بکواس کرنے والا تھا وہ صرف موبائل گھماتا رہا، واٹس ایپ چلاتا رہا، یہاں اتنا مزدور مر گیا، وہاں اتنا ریلوے میں کٹ کے مر گیا، وہاں اتنا آدمی کو آ گیا، یعنی اسی کو صرف دیکھنا ہے اور ہنسی مذاق کی محفل منعقد کرنی ہے، خوب کہا مارنا ہے. گزر گئے 4 سال، کچھ نہیں سیکھا، کچھ نہیں کیا. وقت برباد کرنے والا اس سے دوسرا ڈرے گا نہیں جو وقت کی قدر کرتا ہو، جو تلوار جس کے کانپتی ہو، جس سے لوگ کانپتے ہو. پھر ان سے پوچھے جن لوگوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا. اورنگزیب ہندوستان کا بادشاہ تھا، میرا کام چھوٹا ہے، سارا ہندوستان چلانا کتنا بڑا کام ہے. اتنے راجاؤں کو مسخر کرنا اور اس میں ہندوستان میں اپنا چلانا، اپنا سکہ چلانا بہت بہادری کی بات تھی. نماز پنجگانہ، تہجد، اشراق، اس کے باوجود روحانی طاقت کے ساتھ ساتھ جسمانی طاقت اتنی تھی کہ دیکھنے میں نہیں لاغر دبلا پتلا تھے. چونکہ جس کا تون اونچا ہوگا وہ 10 قدم چلے گا سینہ پکڑ کے بیٹھ جائے گا، اور جو کام کرنے کا عادی نہیں ہوگا اس کا تون اونچا ہوگا، جو کھائے گا سوئے گا اس کا تون ہوگا. بہت سارا پیر صاحب ایسا ہے جو کھانا ہے اور صرف اس کو صاحب پیر مرید کا نذرانہ ہے، اور کھانا ہے سونا ہے. جنت سے بھاگ رہا ہے، یہ جنت کی کیاری ہے، جنت کی کیاری، اور جنت کی کیاری سے جا رہا ہے. جنت کی کیاری سے جو جائے گا جہنم میں جائے گا. جو اس محفل کو اجاڑے گا اللہ تعالیٰ اس کا گھر اجاڑ دے گا. جو اس طرح کی محفل کو اجاڑے گا اللہ اس کی زندگی سے سکون اجاڑ دے گا. یہ قوال کی محفل نہیں ہے، یہ صاحب ناچ گانے کی محفل نہیں ہے، کوئی نیتا کا بھاشن نہیں ہو رہا یہاں پہ. یہاں پہ صرف اسلام اور دین اور قرآن اور سنت کی باتیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ، سبحان میں اللہ. ابھی آدھا گھنٹہ سے بول رہا ہوں، 1 منٹ بھی میں نے آپ کا برباد نہیں کیا ہے، 1 سیکنڈ بھی میں نے برباد نہیں کیا ہے. بالکل کمپلیٹ ایک میسج، ایک پیغام بھی آپ تک پہنچ رہا ہے. وقت کی پابندی جو نہ کرے وہ چپراسی بھی نہیں بن پائے گا، اور جو وقت کی پابندی کرتے ہوئے 18 گھنٹے اسٹڈی کرے وہ بہار کے دیہات کا شبھم کمار پورے بھارت میں IAS کا ٹاپر بن گیا. بہار کا دیہات، ہندوستان 150 کروڑ کی آبادی، کتنے منسٹر ہیں دلی میں اور کتنے منسٹر ہیں ہر اسٹیٹ میں. بنگال کا منسٹر الگ، بہار کا منسٹر الگ، مگر کسی منسٹر کا بیٹا IAS میں ٹاپ کیا یہ نہیں پڑھا آپ نے. ہندوستان میں کتنے لینڈ لارڈ کیپیٹلسٹ ہیں، ٹاٹا، برلا، جندل، متل، مکیش امبانی، کسی کا بیٹا پوتا بھتیجا IAS میں ٹاپ نہیں کیا. کلکتہ، بنگلور، دلی، چنئی، حیدرآباد، وہاں کا بچہ IAS میں ٹاپ نہیں کیا. بہار کے ایک دیہات کا ایک بینک کے کلر کا بچہ پورے ہندوستان میں ٹاپ کر گیا. جو 18 گھنٹے اسٹڈی کرے گا، پڑھے گا، لکھے گا وہ ٹاپ کرے گا. اور جو صرف وقت برباد کرے گا گٹکا کھا کے وہ سمجھ لیں کہ اس کی صحت بھی جائے گی، جوانی بھی جائے گی، ہجڑا بن جائے گا، سماج کی نگاہ میں گرے گا، ماں باپ کی نگاہ میں گرے گا، اور سب سے زیادہ اپنی بیوی کی نگاہ میں گر جائے گا. چونکہ گٹکا کھاتے کھاتے وہ ہجڑا ہو چکا ہے. شادی جب ہوگی اس کی تو شادی ہوگی تو بیوی کے لائق نہیں رہے گا. جب بیوی کے لائق نہیں رہے گا تو بولے گا اب زہر کھا کے مر جاتے ہیں.
जब बीवी ही हमको नहीं लाइक करे तो मैं जहर खा के मर जाऊं। इसलिए अगर समाज को ज़िना से रोकना है, बलात्कार से रोकना है, औरतों को चाय बेचने वाला, दूध बेचने वाला, चादर बेचने वाला, गली कूचे में टेलर मास्टर या ट्यूटर के पास अगर उसको अपनी इज्जत को नीलाम करने से बचाना है कि औरतों की निगाह नीची रहे, औरतों में बलात्कार नहीं हो, औरतें अपने सेटिस्फाइड संतुष्ट रहें, औरतें कहीं से भी चोर दरवाजे से जिना ना करें, औरतें बिल्कुल गुनाह से बरी रहें, समाज में कोई बदकारी ना फैले, बुराई बेहयाई ना फैले। अगर ये तमन्ना है कि ज़ना समाज से मिट जाए तो हर जवान को ताकतवर होना पड़ेगा और बीड़ी, गुटखा, सिगरेट ये सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। जब ये ताकतवर रहेगा तो इनकी बीवियों की निगाहें खैरों की तरफ ना उठेंगी। ये ताकतवर रहेगा, ज़िनाकारी घट जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जब ये अंदर से निढाल कमजोर होगा, चाहे वो हैंड प्रैक्टिस करके कमजोर हो, चाहे तवाइफ के अड्डे पे जाके कमजोर हो, चाहे हिजरों की भट्टी में जाके कमजोर हो, चाहे गुटखा खा के कमजोर हो, चाहे ड्रग्स का आदि बन के कमजोर हो जाए, जवान कमजोर होगा तो समाज में गरीबी भी आएगी, औरतों में बलात्कार भी बढ़ जाएगा, बलात्कार बढ़ जाएगा। इसलिए अगर चाहते हो कि समाज बुराइयों से पाक रहे, नेकों का समाज, मुत्तकी का समाज, बुजुर्गों का समाज, अच्छों का समाज, सिविलाइज्ड का समाज, डिसिप्लिन का समाज, एक ही रास्ता है कि बुराइयां छोड़ दे, नेकी का खूगर हो जा तो जन्नत वहां मिलेगी, अच्छी सोसाइटी यहां मिल जाएगी, अच्छा समाज यहां मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। ऐसा नहीं होता है कि मैं काम करूं लुच्चों जैसा और बेनिफिट हो जाए शरीफों जैसा। ऐसा नहीं होता है कि मैं काम करूं लफंगों जैसा और रिजल्ट उसका उल्टा निकल जाए। मैं 1 घंटा पढ़ूं और मैं IAS ऑफिसर बन जाऊं, नहीं होता है ऐसा। मैं 2 घंटा ही पढ़ूं और मैं स्कूल में सारे बच्चों में टॉप कर जाऊं, नहीं होता है ऐसा। दुनिया में मेहनत चाहिए, लेबोरियस बनना होगा, पंक्चुअल बनना होगा, वक्त का पाबंद बनना होगा, तब समाज का भी, माँ बाप का भी, अपनी जिंदगी का भी, अपने फ्यूचर के आप काम आएंगे। और ये पैगाम किसी दूसरे ने नहीं दिया है, मेहनत करने का पैगाम और वक्त की पाबंदी का पैगाम ये सिर्फ मज़हब इस्लाम ने दुनिया को अता किया है। अगर यकीन नहीं आए तो वक्त की पाबंदी कहते किसे है? वक्त पे खाना, वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, वक्त पे सारा काम करना, यानी एक रूटीन हो हमारी, एक शेड्यूल हो हमारा, एक जदवल हो हमारा, उसी सिलेबस के मुताबिक मेरा सारा काम सुबह से लेकर शाम तक। वही आदमी सक्सेसफुल लाइफ गुजारेगा जिसको ना सोने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, सोना कब है, जागना कब है, खाना कब है, बाथरूम कब जाना है, घूमने कब जाना है, बात कब करनी है, स्टडी कब करनी है। कोई रूटीन नहीं उसका, कोई उसका जदूल नहीं हो, उसका कोई उसका जदवल नहीं हो, कोई शेड्यूल नहीं हो। वो जैसे चाहे वो करे। वो नाकाम आदमी, वो ना उससे बीवी डरेगी, ना बच्चे डरेंगे, ना समाज डरेगा, ना कोई डरेंगे, कोई नहीं डरेगा। कामयाब आदमी वही है जो एक एक मिनट की कदर करता हो, एक एक लम्हे की कदर करता हो, जो इस जिंदगी को कीमती समझता हो। फॉर एग्जाम्पल, वक्त की अहमियत को जितना इस्लाम ने बताया उतना किसी ने नहीं बताया। आप रमज़ान के दिन में सहरी का टाइम आपका है 3:40, आखिरी टाइम। 3:40 से पहले आपकी बीवी आपके लिए हलाल है, दाना आपके लिए हलाल है, पानी आपके लिए हलाल है। कितना कब? 3:40 से पहले वो बीवी हलाल, पानी हलाल, दाना हलाल। और 3:40 के बाद बीवी हराम हो गई। 3:41 पे बीवी हराम, दाना हराम, पानी हराम। 1 मिनट में जो चीज पहले हलाल थी अब वो चीज हराम हो गई। 1 मिनट में इतना बड़ा फर्क हो गया। हम रोजा रखे, इफ्तारी का टाइम 6:10 है। 6 राइट टाइम की बात मैं कर रहा हूं। जो एहतियातन 5-10 मिनट आगे पीछे करते हैं वो अलग बात है। जो राइट टाइम, जिस वक्त सूरज डूबता है, राइट टाइम फला मिनट 38 सेकंड, उसकी बात मैं कर रहा हूं। राइट 6:10 पे सूरज डूबता है, इफ्तार का टाइम शुरू होता है। 6:09 पे बीवी हराम है, दाना हराम है, पानी हराम है। लेकिन 6:10 पे वही पानी हलाल हो, वही दाना हलाल हो, वही बीवी हलाल हो। 1 मिनट पहले जो चीज हराम थी 1 मिनट के बाद हलाल हो गई।
जो चीज 1 मिनट पहले हलाल थी वो 1 मिनट के बाद हराम हो गई। अभी फजर का टाइम शुरू होता है 4:10 पे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अलग अलग टाइम है, 4:10 मान लेते हैं, 4:09 तक ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं आप, ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं। जैसे अभी कोई नमाज नहीं पढ़े होंगे ईशा की, फजर की अजान अपने हिसाब से टाइम अपने हिसाब से होती है, टाइम अपने हिसाब से लोग सेट करते हैं कमेटी वाला, यानी टाइम शुरू होता है जो राइट टाइम वो जैसे 3:48 पे, 4:12 पे राइट टाइम शुरू होता है फजर का, तो 4:11 तक ईशा कोई पढ़ लिया नमाज उसकी हो जाएगी, नमाज की हो जाएगी। 1 मिनट पहले ईशा, 1 मिनट के बाद फजर। ईशा के टाइम में फजर की नमाज पढ़ना हराम, आप नहीं पढ़ सकते, कज़ा नहीं, अदा की बात कर रहा हूँ। और फजर का टाइम शुरू हुआ 4:10 पे, अब ईशा की नमाज अदा नहीं पढ़ सकते, आप कज़ा पढ़ सकते हैं, अदा नहीं। अब वो टाइम खत्म हो गया। 1 मिनट पहले नमाज हलाल, 1 मिनट के बाद नमाज हराम। 1 मिनट पहले ये सारी चीजें हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। ज़कात फर्ज होती है कब? जब किसी चीज पर साल गुजर जाए, यानी जो साहिब निसाब के पास इतना माल हो कि साल गुजर जाए, उस पर ज़कात फर्ज है। जैसे मुझ पर 1 लाख रुपया है, अभी 1 लाख मेरे पास है, 360-65 दिन जो साल की गिनती के दिन होते हैं वो अगर गुजर गए तो अब ज़कात फर्ज हो गई। अब उसका 2500 रुपये ज़कात निकाल देना है, यानी 40वां हिस्सा उसका, किसका, कितने का, 1 लाख का। 1 करोड़ का कितना हुआ, 2.5 लाख, 40वां हिस्सा निकाल देना है। लेकिन 1 दिन पहले साल नहीं लगा है, 1 दिन पहले साल नहीं लगा है, 1 लाख या 1 करोड़ मेरे पास है, 2.5 लाख ज़कात निकाली, 1 करोड़ है, 1 दिन बाकी है साल पूरा होने में, मैंने वह माल अपनी बीवी को दे दिया, मैंने ये गिफ्ट तुमको दे दिया, तुम इसके मालिक हो गए। अब ज़कात इस पर फर्ज नहीं है, क्योंकि साल नहीं लगा, 1 दिन बाकी है। साल के 365 दिन और साल नहीं लगा, बीवी को मैंने गिफ्ट कर दिया, अब बीवी पर भी ज़कात फर्ज नहीं है, क्योंकि जब 1 साल लगेगा तब फर्ज होगा उस पर। और अगर वो 6 महीने के बाद फिर वापस मुझको गिफ्ट कर दिया, ये 1 करोड़ मैंने आपको तोहफे में दे दिया, तो फिर अब 1 साल मेरे पास रहेगा तब ज़कात फर्ज होगी। ऐसा ही कीजिएगा आप लोग भी। बीवी के पास अगर ज़कात है, 10 लाख रुपए का जेवर है, और वो जेवर 10 लाख रुपए का है, तो रमज़ान आने से पहले शौहर को गिफ्ट कर दीजिएगा, और अब रमज़ान ख़त्म होने के बाद बीवी को गिफ्ट कर दीजिएगा, तो फिर क्या होगा, बेचारा गरीब बेचारा क्या हाल होगा। एक तरीका है, फर्जियत की बात मैं कर रहा हूँ, कानून की बात मैं कर रहा हूँ, अखलाक की बात तो वही है कि 1 दिन के बाद ज़कात फर्ज होने दे, ताकि तेरा माल भी पाक हो जाएगा, गरीबों की खुराक भी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़कात इसीलिए है ताकि अमीरों के सदक़े में गरीबों के चूल्हे में आग सुलगती रहे। जब तक ज़कात फर्ज न हुई थी, अमीर गरीबों का खून चूसता था, और गरीब मालदारों की तबाही की तमन्ना करता था कि किस दिन ये मालदार जलील हो, रुस्वा हो, ताकि मैं ताली बजाऊं। और मालदार गरीबों का खून चूसता था, काम भी करवाता था, मजदूरी भी नहीं देता था, और कहता था गरीबों को कुर्सी पे मत बिठाना, एक दिन यही तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा। ये गरीब है, जलील है, इसको जलील बना के ही रखना, इज्जत दिए तो फिर ये तुम्हारी जान के लाले पड़ जाएंगे, इनसे बड़ा खतरा होगा। ये गंदी सोच आज भी लाखों आदमी की है। इन गरीबों को सर मत चढ़ाना, अपने करीब मत आने देना, वरना ये अस्तहा सांप डंक मारेगा, फिर तू जिंदा नहीं रह पाएगा। ये जलील है, जलील ही बना के रखना। यही फेक सोच आज से 1400 साल पहले थी। मालदार गरीबों को इसी तरह शोषण करता था, और गरीब मालदारों की तबाही का मुंतजिर रहता था। कुर्बान मजहब इस्लाम की इज्जत और अजमत पे इस्लाम ने जहां नमाज, रोजे, हज फर्ज किए, वहीं ज़कात का कानून भी दिया कि अमीरों, जब तुम्हारे पास इतना माल हो जाए तो उस माल का इतना हिस्सा ज़कात के तौर पर निकालना, ताकि तेरे गरीब भाइयों की खुराक हो जाए, और तुम माल निकाल के गरीबों को पहुंचाना। जब गरीब जो मालदार की तबाही की तमन्ना करता था, और जो मालदार गरीबों का खून पीता था, ये पैसे लेके उनके पास पहुंच रहा है, ये माल तुम्हारे लिए है, तुम इसके लोग, ये ज़कात का माल है, ये फितरे का माल है, ये मैंने खेती बाड़ी की है, मैं बाद में खाऊंगा, इसका उश्र पहले तुम खा लो। यानी 50 कुंटल मक्के की खेती हुई है, अब ये 2 कुंटल तुम इसे रख लो, बाकी मेरे लिए। जब गरीबों ने देखा, जो मुझको जानवर समझता था, ये ज़कात ला के दे रहा है, फितरा ला
لا کے دے رہا ہے یا عشر لا کے دے رہا ہے. اور پھر جب مالدار جب غریبوں کے پاس جا کے زکات دینے لگے تو جو غریب مالداروں کی تباہی کا منتظر رہتا تھا یا کب مرے کہ میں تالی بجاؤں یا کب ان کا گھر زلزلہ میں دھسے کہ میں تالی بجاؤں, کب یہ تباہ ہو کہ میں تالی بجاؤں, جب وہ دیکھنے لگا کہ مالدار میرے پاس آ رہا ہے, میرے گھر کے چولہے ان کی وجہ سے جل رہے ہیں, یہ قانون زکات کی برکتوں سے, تو اب یہ غریب ان کی تباہی کی دعا نہیں کر رہا ہے, یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا, مالک ان کی دولت سلامت رہے تاکہ میرے چولہے میں آگ سلگتی ہے. کون ہے جس نے امیروں کو غریب کے قریب کر دیا؟ کون ہے جس نے غریبوں کے ہاتھ امیروں کی سلامتی کے لیے اٹھا دی؟ یہ پیغمبر اعظم کی ذات گرامی ہے. وہ رحمت دو عالم پیدا ہوئے, امیروں کے دل میں غریبوں کا سمان ڈالا, غریبوں کے دل میں امیروں کی عزت ڈال دیا, پھر یہ دونوں مل کر ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے لگے, ایک دوسرے کا خیال کرنے لگے. تو کہا جاتا ہے آج اگر امیروں غریبوں میں دوستی ہے, یہ احسان رحمت دو عالم مصطفیٰ جانے رحمت کا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, اخلاق مصطفیٰ, کردار مصطفیٰ. بات چلی ہے آج ہم ذلیل ہو گئے, آج ہم رسوا ہو گئے, صرف اسی لیے کہ میرا کھانا پینا سب کافروں کی طرح, میرا سونا اٹھنا بیٹھنا سب کافروں کی طرح, میرے گھر میں شادی بیاہ منگنی ختنہ عقیقہ سب کافروں کی طرح, میری ماں بہن بیٹیوں کا چلنا پھرنا بازار میں سب کافروں کی طرح. یعنی وہی ایک ایکٹریس ہیروئن ہے جو چڈی پہن کے ناچتی ہے تو ہم بھی وہی پہنیں گے, وہ جینس ٹی شرٹ پہن کے ناچتی ہے تو ہم بھی وہی پہنیں گے, وہ 10 مردوں کی گود میں جھولتی ہے تو ہم بھی 10 مردوں کی گود میں جھولیں گے. ایک مہینہ ان سے فون سے بات کرنا, ایک مہینہ ان سے فون سے بات کرنا, یہ قیمتی پرس 5-5 ہزار روپے کا, باپ مزدوری ٹھیلا پہ کیلا بیچ رہا ہے اور بیٹی ان کی 5 ہزار کی پرس لے رہی ہے, باپ ان کا صاحب سبزی اور لہسن اور پیاز بیچ رہا ہے, اب بیٹی اس کی صاحب 20 ہزار روپے کی موبائل ہاتھ میں لیے ہوئی, اب باپ صاحب وہ ریڈی رکشہ چلاتا ہے, اب بیٹی صاحب وہ مہنگا برانڈیڈ کمپنی کی جینس اور ٹی شرٹ پہنے ہوئی. کہاں سے آتا ہے یہ پرس؟ کہاں سے آیا 5 ہزار روپے کا؟ یہ موبائل کہاں سے آئے 20 ہزار روپے کے؟ یہ برانڈیڈ کمپنی کے جینس ٹی شرٹ کہاں سے آئے؟ یہ برانڈیڈ کمپنی کی جوتی کہاں سے آئی؟ یہ برانڈیڈ کمپنی کی گھڑی کہاں سے آئی؟ یہ صاحب مٹھائی کے پیکٹ کہاں سے روزانہ آتے ہیں؟ یہ زیورات کہاں سے آئے ناک میں کان میں؟ یہ ڈائمنڈ کہاں سے آیا ہے؟ وہیں سے آیا ہے. دوسروں سے مسکرا کے ملنا, دوسروں سے فون سے باتیں کرنا, دوسروں کی گود میں جھولنا, اپنی زندگی کو دوسروں کے سامنے پیش کر دینا, چہرے کا غلط استعمال, ہاتھ کا غلط استعمال, زبان کا غلط استعمال, شادی سے پہلے ہی سارے جسم کو پولوٹیٹ کر دینا, داغدار بنا دینا, مانع حمل ادویات کا استعمال کر کے یوٹیرس کو کینسر زدہ بنا دینا. میڈیکل سائنس کہتی ہے جو حمل کو روکنے کے لیے زیادہ دوائیوں کا استعمال کرتی ہو اس کے بچہ دانی کے کینسر ہونے کا 90% چانس بڑھ جاتا ہے, اور جتنے بھی یوٹیرس کے کینسر ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر اسی کا ہاتھ ہوتا ہے. یا تو شادی کے بعد بچہ پیدا نہ ہو دوائی استعمال کی جائے, یا شادی سے پہلے ہی حمل کو روکنے کے لیے اجنبی مردوں سے ناجائز طریقے سے سمبند بنا کر اب بے عزتی سے بچنے کے لیے حمل کو روکنے کی دوائیاں استعمال کی جائے. تو شادی سے پہلے سماج کے 10 چھوکروں کے ساتھ صحبت قائم ہوئی اور دوائی استعمال ہوا, شادی کے بعد جب شوہر کے پاس آئی ہے تو اب بچہ ہی نہیں, چونکہ بچہ دانی کا کینسر ہو چکا ہے, پہلے سے ہی کینسر کا مرض لے کے آئی, اب خود مریں گی اور شوہر کو بھی ماریں گی, پورے گھر کا سارا سکون برباد کریں گی. اور پھر بال بچہ جس کا بدن یوزڈ ہو چکا ہو وہ شادی کی لذتوں کو کیا جانے گی؟ جس مرد کے بدن یوزڈ ہو چکا ہو وہ شادی کی لذت کو کیا جانے؟ شادی کی پہلی رات 18 سال کا جوان جب 18 سال کی لڑکی سے نکاح کرتا ہے, جب شادی کی پہلی رات آتی ہے 50 کھرب روپے کا مکان وہ لذت نہیں دیتا. جو لذتیں اس دن ایک نئی مخلوق نئے جوڑے کے ساتھ ملنے, ان کے بازو میں بیٹھنے کے بعد ملتی ہے. زندگی کی سب سے پہلی بار جس نے آج تک کسی لڑکی کے بازو میں نہ بیٹھا ہو, جو لڑکی آج تک کسی مرد کے پاس نہ بیٹھا ہو, یہ بتائے کہ اس دن کی زندگی پہلی رات کیسی رات ہوگی. وہ 50 سجدہ کرے گا رب کو, الہی تیرا کروڑ احسان کہ تو نے بچپن میں موت نہیں دیا, تو نے جوان ہونے کا موقع دیا, ابھی جوان میں بن بیاہ ہی نہیں رکھا, تو نے شادی کر کے مجھ کو اچھا شوہر دیا, تجھ کو اچھی بیوی دی. اس لذتوں کو وہی جان سکتا ہے جو اس سے پہلے اس کا غلط استعمال نہیں کیا ہوگا.
और जो उससे पहले गलत इस्तेमाल कर चुका उसके नजदीक शादी की पहली रात हो या 50वीं रात हो, उससे क्या मतलब है? ये तो तमाशा स्कूल में 10 साल पहले से आ चुका है। जवान हुआ है 18 साल में, शादी हो रही 38 साल में, या 20 साल जो जवान वो रहा, इस 20 साल में जाने कितने 20 लाख गुना हो गए। अब उसको शादी की क्या खुशी होगी जो 38 साल के बुढ़ापे में शादी कर रही है, या 40 साल के बुढ़ा होने के बाद शादी कर रहा है? उसको क्या शादी की खुशी महसूस होगी? नौकरी मिलेगी तब शादी, बेटी लड़की अच्छी मिलेगी तब शादी, या लड़की पैसे वाली मिलेगी तब शादी, या लड़का नौकरी वाला मिलेगा तब शादी। इस बीच में चाहे लड़की गलत इस्तेमाल करे, लड़का गलत इस्तेमाल करे, वो दोनों चाहे ज़िनाकार बन जाए, उनकी सारी जौहरी हयात खत्म हो जाए, वो सब चलेगा, मगर शादी उसी लड़की से होगी जिसकी नाक लंबी होगी, आंख बड़ी होगी और हाइट 8 फीट की होगी, और जिनके पास माल माता होगा, पैसा होगा। और फिर चाहे लड़की उसकी 38 साल की बुढ़ी हो जाए, चलेगा, मगर लड़का वही मिलेगा जो नौकरी वाला हो, जो 1 लाख महीना कमाता हो, या 2, 4, 10, 20 करोड़ का बिजनेस उसके पास हो, या उसकी नौकरी हो, उसके पास बड़ा कारोबार हो, उसी से शादी होगी। वरना मेरी बेटी 40 साल की नहीं हो तो 14 साल की है, 40 साल की बेटी 14 साल की है। इसीलिए से अब वो चाहे कुछ भी हो, मगर लड़का चाहे नौकरी वाला, लड़का न मिला 40 साल की अधेड़ हो गई, लड़की नहीं मिली खूबसूरत तो 40 साल का बुड्ढा हो गया। अब सब कुछ, सारा क्रीम, सारी मलाइयां वो गली के छोकरे खा गए, और 40 साल के बुढ़ापे में खोखला और हड्डी और खोसट बनकर शौहर के पास आ गई है। क्या उस जिंदगी में लज्जत होगी? क्या वहां चाशनी होगी? क्या उस जिंदगी का लुत्फ होगा? यहाँ पे घुट घुट के दोनों जिएंगे, मरेंगे। उनकी आने वाली औलाद एक तो होगी नहीं, क्योंकि बुढ़ापे में औलाद होती नहीं है जो जवान होने के बाद 20-25 साल तक ऐसे सूखा रह चुका हो। इसीलिए मेजॉरिटी औलाद के न होने का मसला प्रॉब्लम में पैदा हो रहा है। पैगंबर आज़म रहमते दो आलम बन के आए हैं। वो रहमते दो आलम क्या कहते हैं? जब बच्चे जवान हो जाएं फौरी शादी दिला दे, और अगर शादी नहीं दिलाया फौरी तो उसमें ताखीर हुई तो जब पांव फिसलेगा बच्चा का या बच्ची का, उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। ज़िना करेगी लड़की, मुजरिम होगा बाप, ज़िना करेगा लड़का, गुनहगार होगा बाप। ये गुनहगार क्यों होगा? शादी में ताखीर की वजह से। नौकरी नहीं मिले, शादी वक्त पे होगी। नौकरी अलग चीज है, शादी अलग सुन्नत है। शादी होगी, घर में 10 औरतें खा रही है, 5 बहन है वो खा रही है, 1 माँ है वो खा रही है, 1 फूफी है वो खा रही है, 2 फूफी लौट के आई है वो खा रही है। ये 10 औरतें खा रही हैं, 5 मर्द खा रहे हैं, और बेटा जवान हो गया है। उसके लिए नौकरी, मकान, गाड़ी सब हो तब शादी होगी। यानी एक औरत का 9 औरतें खा रही है, 10 लोग खा रहे हैं। एक औरत का पेट इतना बड़ा है कि उसके लिए 1 लाख रुपए महीने की आमदनी चाहिए, उसके लिए साहब क्या कि 1 करोड़ का बंगला चाहिए, उसके लिए 1 करोड़ की नौकरी चाहिए, तब शादी होगी। लानत है उस सोच पे। जब 10 लोग खा ही रहे घर में, एक औरत अगर बढ़ गई, एक फर्द बढ़ गया, उससे क्या होने वाला है? अगर तुम अपनी जिंदगी को पेचीदगी में डाल दोगे और ज्यादा तमन्नाओं की कीचड़ में लथपथ कर दोगे, इसका कोई जवाब नहीं है। और फिर उस वक्त शादी होती भी है उसकी कैसे? ये बात, मैं मर्द हूं, अब औरत आई है शादी करने के बाद, पलंग किसका है? औरत का। कुर्सी किसकी है? औरत की। सोफा किसका है? औरत का। ये घर की सजावट के सारे सामान किसके हैं? औरत का। ये पलंग जिस पे बैठ के वो मुरादें पूरी कर रहा है, वो पलंग है किसकी? उस दुल्हन की। वो सोफा पे बैठ के वो अखबार पढ़ रहा है, वो सोफा है किसका? वो लड़की का। वो जिस बर्तन में खाना खा रहा है, वो बर्तन है किसका? लड़की का। एक लड़की का पेट जो 2 रोटी खाती है वही उतनी भारी है। उसके लिए नौकरी, चाहे उम्र आखिरी हद पर पहुंच जाए, और फिर वो आती भी है तो 10 साल का बेडशीट अपना लेके आती है, 50 साल जिंदा रहेगी तो पलंग लेके आती है, वो सोफा लेके आती है। जिस घर में हम रहते हैं उस घर में पलंग उसी बीवी का, सोफा उसी का, या बेडशीट 25 पीस लाई है बाप के घर से जो 25 साल तक चलेंगे, वो बेडशीट उसका, सोफा उसका, हांडी उसकी, प्याला उसका, गिलास उसका। जिस गाड़ी पे पल्सर पे चलता हूं वो उसके बाप का दिया हुआ, आप में जो घड़ी है वो उसके बाप का दिया हुआ, जो मैं पैंट 10 साल से पहना उसके बाप का दिया हुआ। तुम चाहे हिजड़ा है क्या? पलंग बीवी का, चादर बीवी की, वो प्याला बीवी का, हांडी बीवी की, और तुम हिजड़ा किस काम से पैदा हुआ है? मर्द है वो जो शादी से पहले अपने घर में सोफा अपनी कमाई से लाए, पलंग अपनी कमाई से लाए, बर्तन अपनी कमाई से लाए, गाड़ी अपनी कमाई से लाए, और सिर्फ लड़की को निकाह करके लाए। और कोई चादर हांडी नहीं लाएगी, और कोई पलंग कुर्सी नहीं लाएगी, सिर्फ दुल्हन बन के घर में आएगी। अब वो बोलेगा, ये पलंग मेरी है तुम आराम से करो, ये सोफा मेरा है तुम आराम से रहो, ये हांडी मेरी है तुम आराम से रहो, ये गिलास मेरा है तुम आराम से रहो, तुम रानी बन के रहो मेरे यहाँ, तुम
यही तो सबसे बड़ी जहेज हो। ये बाकी मैं मर्द हूँ, ये सारा काम हमारा है। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी बीवी सारी जिंदगी अपना दिल मेरे पाँव के नीचे बिछा देगी, वरना गाड़ी से लेके गिलास तक अगर वो लाया तो सारी जिंदगी उसके पाँव को चूमना पड़ेगा, उसकी चप्पल को सीधी करनी पड़ेगी, सारी जिंदगी उसका नाज उठाना पड़ेगा। इसलिए इस्लाम कहता है मर्द बन के रह, जहेज का मुतालबा मत कर। अगर घर को जन्नत बनाना चाहता है वक्त पे शादी कर, लड़की के बाप से कुछ मत ले, तेरे घर में जन्नत से रोजाना हवाएं आएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती शहरयार खान, खलीफा ताबू शरिया। मर्द ही नहीं है तुम, हिजड़ा है हिजड़ा, जो औरतों के पलंग पे, औरतों के सोफा पे, औरतों के गद्दा पे, औरतों के गिलास में पानी पिए, वो मर्द नहीं है, वो हिजड़ा है। इसलिए तो आखिर जमाने में हिजड़ों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, ना मर्दों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। इसको बाप ने पैदा ही किया है कि जो आज तक बाप ने पैंट शर्ट नहीं पहनाया, वो 3 पीस वाला कोट पैंट, और ये उसी लड़की का बाप गरीब मांग के, भीख मांग के, जमीन बेचकर या 10 साल से कमाई करके पैसा जमा करके वो रखेगा, तब जाके अपने दामाद को 3 पीस का सूट और पैंट देगा। और ये मर्द बन के तलाक किसको धमकी देगा? नादान कौन सी तलाक की धमकी देता है? तुमने कपड़ा उसका पहना, तुमने गाड़ी उसकी इस्तेमाल की, तुम्हारे घर में सारा सामान उसका है, फिर तुम मर्दान की क्या दिखलाता है? मर्दान की मत दिखला, तुम उनके सामने कमजोर हो, तुम औरतों के सामने कमजोर हो, तुम औरतों के सामने सुलील हो, तुम औरतों के सामने तेरी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए कि मर्द वो होता है जो सिर्फ दुल्हन लाती है, सामान नहीं लाता है। फिर उसके बाद वो दुल्हन सारी जिंदगी शौहरों के पांव से लिपट के चैन से गुजार देती है, मुस्कुरा के शौहर का इस्तेमाल करती है। अगर मर्द है तो फिर उसी तरह अहद कर लीजिए कि हम हिजड़ा नहीं, मर्द की तरह जिंदा रहेंगे, और फिर वक्त पे शादी कर लेंगे, शादी के बाद भी पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं कि शादी के बाद दिन रात उसी में घुसे रहेंगे। अभी एक हिंदू की बेटी, एक चपरासी की बेटी थी, वो शादी हो गई उसकी, शादी के बाद ससुराल गई, 1-2 बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन स्टडी छोड़ी नहीं, किताब पढ़ती रही। और हमारा मदरसा जहां है उसी मोहल्ले में उसका घर है, उसका ससुराल है जहां शादी उसकी हुई है। और फिर वो पढ़ी। हमारी माँ बहन बेटियां शादी को ही बड़ा मसला बना करके अब घर में आकर के यहीं पे दिल दिमाग उसी में उलझा देना है, और जिसका बड़ा मकसद नहीं होगा वो छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा, सास ननद ससुर, इससे उससे जिंदगी भर लड़ती रहेंगी। और जिनका बड़ा मकसद हो हमको ये काम करना है, जब वो बड़ा मकसद रहेगा तो छोटी छोटी बातें ऐसे ही खत्म हो जाती है। और यहाँ कोई बड़ा मकसद नहीं तो क्या होगा? कलिया चक्री साहब दरियापुर में 4 पीस का मुंह देखना है, उसकी दुकान देखनी है, उसका जूता देखना है, उसकी बारात देखनी है, उसकी गाड़ी देखनी है। 1 घंटा तक देखा, नजरबाजी की, नजर को चमकाया, सेक लिया और घर में आ गए। कोई काम ही नहीं तो क्या करेगा? मन लगाने के लिए दुकान देखेगा, गाड़ी देखेगा, ट्रक देखेगा, दूसरों को देखेगा। जिसका मकसद है इबादत और जन्नत जाना, वो 1-1 मिनट कीमती रहेगा। जिसका मकसद रहेगा डीएम बनना, वो 1-1 मिनट में वो स्टडी करेगा, बर्बाद ना हो। ना डीएम बनना है, ना दुनिया की कामयाबी है, ना जन्नत जाना है। वो दूसरों का मुंह नहीं देखेगा तो क्या देखेगा? दूसरों की गाड़ी नहीं देखेगा तो क्या होगा? दोस्त की शादी है और ये दीवाना हो गया है, यानी बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया है। शादी है बेगाने की, ये अब्दुल्ला दीवाना है। ये बाइक लेके इधर नाचना, उधर नाचना, उधर घूमना, उधर घूमना। शादी है बेगाने की, अब्दुल्ला दीवाना हो गया है। यानी कोई काम धाम रहे तब ना, या अब कोई काम तलाश करता है। अब उनकी शादी है, वहां जाना, वहां जाना, ये लाना, वो लाना, बाइक लाना, पान लाना, सुपारी लाना, ठंडा लाना, ये लाना, वो लाना, बारात को रिसीव करना, कपड़ा पहुंचाना, कपड़ा खरीदना, साथ मिर्च लाना, मसाला लाना। अब कोई काम ही नहीं है तो क्या करेगा वो? अब उसका भाई भाई सब है, दोस्त 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 फिर रहे हैं। जिसका बड़ा एम रहता है जिंदगी का, मुझको जन्नत जाना है, मुझको इबादत करनी है, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करना है, या फिर मुझको दुनिया में जन्नत जाने के साथ साथ टीचर बनना है, दारोगा बनना है, हमें प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है, हमें प्रोफेसर बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, हमें आईपीएस बनना है। तो फिर वो 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां लड़कियां बाजार में नजर नहीं आती हैं, क्योंकि पता चला उस इलाके में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर उसी इलाके में बनते हैं। वहां की
सारी लड़कियां हॉस्टल में है, वहां के सारे बूढ़े सिर्फ मार्केट में नजर आएंगे, ना जवान लड़कियां ना जवान लड़के। एक नशा है, एक मुकाबला है। उसकी बेटी डीएम बनी है, मेरी बेटी भी डीएम बनेगी, उसका बेटा इंजीनियर बना है, मेरा बेटा एमबीबीएस बनेगा। यानी एक मुकाबला है पढ़ने लिखने का। चौक चौराहे पे कोई लड़का नजर नहीं आता, न गुटखा खाते, न बीड़ी पीते, न सिगरेट पीते, न इधर उधर मोटरसाइकिल को घुमाते, न किसी के दालान पर बैठकर 1 घंटा से मोबाइल चलाते। वो सबके साथ अपने रूम में पैक है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा साथी उनकी किताब है, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा साथी कॉपी कलम है, स्टडी है। यानी कमरे में बैठकर सारी दुनिया को निगाहों के सामने महफूज रखना, स्टोर रखना, यही उसका काम है। बड़ा मकसद होता है तो आदमी छोटे छोटे काम से ऊपर उड़ जाता है। यहाँ औरतों का कोई मकसद, कोई प्लान ही नहीं है। अब वो लड़ाई झगड़ा, सास से लड़ाई, ससुर से लड़ाई, देवर से लड़ाई, ननद से लड़ाई, अपने शौहर से लड़ाई। जब कोई बड़ा प्लान ही नहीं है तो लड़ाई ना होगी तो क्या होगी? प्लान रहता है, प्लान को हासिल करने के लिए कोशिशें होती हैं, तब आदमी को छोटी छोटी बातों में उलझने का के लिए टाइम नहीं रहता उसका। अब हमको हर 3 दिन में एक खत्म कुरान करना है। एक खत्म कुरान करने के लिए डेली उसको 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब जो 5 घंटे अपने आप को कुरान से जोड़ के रखेगा, शौहर के पास टाइम उसके पास ज्यादा नहीं है, ननद के पास टाइम नहीं है, लड़ाई नहीं होगी। आज के पास कोई काम नहीं तो बैठ के बात करना है। जब बैठ के बात करना है तो उसी बात लड़ाई होती है, बात जंग होती है, तो घर जंग का अड्डा है। ये मुसलमानों की बेटियां हैं, ये हिंदू की बेटी मेरे मोहल्ले की, जिन्होंने शादी के बाद 2 बच्चे भी पैदा हो गए। उसके बाद जिन्होंने बीपीएससी, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है, एक यूपीएससी का है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पूरे इंडिया लेवल का सबसे हाई क्लास का टफ कंपटीशन होता है, जिसको पास करने के बाद बच्चे आईएएस बनते हैं। और फिर बीपीएससी जो बिहार लेवल का कंपटीशन होता है, जिसमें बीडीओ लोग बनते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं। उसी को बंगाल में बंगाल में बीपीएससी होता होगा, बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन होता होगा। उसके करने के बाद लोग सीओ बनते हैं, सर्किल ऑफिसर, बीडीओ बनते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये ऑफिसर आईएएस नहीं, ये बीपीएससी कंप्लीट करने के बाद ये सब बच्चे बनते हैं। वो औरत शादी के बाद 2 बच्चे पैदा होने के बाद उन्होंने किताब से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। तो वो बीपीएससी कंप्लीट करती है और अच्छे क्लास के जॉब में जाती है। सारा इलाका हैरत में पड़ गया कि शादी तरक्की में रुकावट नहीं डालती है। अगर आदमी के दिमाग में काम का जुनून हो तो शादी के बाद ही वो मकसद हासिल हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब कैसे क्या होगा? मेरा प्लान था 2 घंटे का खिताब करने का और अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है। अभी दूसरा खतीब आ गया। चलिए, दूसरा खतीब आने का मतलब होता है कि बस अब आप अपनी गुफ्तगू समेट दीजिए। दूसरे लोग आ गए तो अब मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। गुफ्तगू शुरू ही नहीं हुई तो क्या समेटूं, कहाँ से समेटूं? अभी तो गुफ्तगू फैल ही रही है, अभी तमहीद है, तकरीर हुई कहाँ है? तकरीर अभी जब शुरू होगी तो फिर 4 घंटे लग जाएंगे। इसलिए इस बार तमहीद रहने दीजिए और आइंदा साल तकरीर होगी इंशाअल्लाह। होगी ना इंशाअल्लाह? आइंदा साल होगी 2.5 घंटे की तकरीर और इस बार होगी 1.5 घंटे की तमहीद। 1 घंटा हो गया, आधा घंटा और होगा। इस साल तमहीद होगी, अगले साल बोलिए ना क्या होगा? अगले साल तकरीर होगी। इस साल तमहीद होगी, अगले साल तकरीर होगी। अगले साल ये बुलाएंगे तब ना, अगर नहीं बुलाएंगे फिर तकरीर कैसे होगी? दुनिया के सारे लोग हुस्न जुल्फ को देखकर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाए, यानी वो हुस्न और जमाल की मुजस्समा नेक लोगों के लिए वहां तैयार है। अगर वो उस हूर का हुस्न दिमाग में समा जाए, वो जन्नत की बातें दिमाग में समा जाए, और ये समाज की छोकरी जो बीमार पड़ने के बाद काली हो जाएगी, जो बूढ़ी होने के बाद चेहरा लटक जाएगा, जो 10 साल के बाद इनके पास जाने बदन से ऐसी बदबू निकलेगी कि करीब जाने के काबिल शौहर नहीं रहेगा, वो तो निकाह की बरकत है कि आदमी 80 साल के बुढ़ापे में अपनी बीवी के साथ एक बिस्तर पर सोता है। वहां जिस्म को हाजत नहीं है मगर निकाह की बरकतें हैं। और लेकिन वही लड़की जो अपने जिस्म की नुमाइश करके 2-4 मर्दों को बदलती है, तो फिर क्या, जब तक वह तंदुरुस्त है तभी तक उनके पास ग्राहक आते हैं। और जिस दिन वह बीमार पड़ी, चेहरा काला हुआ, चमड़ा लटक गया, बूढ़ी हुई, कोई खास डालने तक नहीं आएगा, कोई थूकेगा तक नहीं। वह दरवाजे पे जाके दरगाहों पे बैठ के भीख मांगेगी या जहर खा के मर जाएगी। लेकिन तुमने नहीं देखा एक 80 साल की बुढ़िया को 90 साल का बुढ़ा कांधे पे बिठा के डॉक्टर के पास ले जाता है और कहता है, डॉक्टर बाबू इसको बचा दे, करके बुढ़िया मर गई तो मैं मर जाऊंगा। वहां जिस्म नहीं चाहिए मगर वक्त बढ़ता जा रहा है, मोहब्बत पुख्ता होती जा रही है। जवानी में ऐसा करता हुआ जवान तो कहता कि इसके जिस्म को हाजत है, इसकी 90 साल के बुढ़ापे में क्या हाजत है बीवी की? मगर ये निकाह की बरकत है, चूंकि यह दोनों एक
साथ मिला है रब के नाम पे, अल्लाह का नाम लेके जुड़ा है, उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। और जहां रब का नाम न हो, जहां सिर्फ सेक्सुअल पावर हो, सेक्सुअल डिजायर हो, जहां सिर्फ सेक्स हो, जहां सिर्फ वर्ल्डली विशेष हो, जहां दुनियावी ख्वाहिशात हो, जहां शैतानत के नाम पे रिश्ता जुड़े, ईमान का सौदा करके आदमी जुड़े, अल्लाह रसूल को नाराज करके जुड़े, न माँ बाप की नाक कटवा के जुड़े, अपने खानदान की आबरू को मिट्टी में मिला के जुड़े, उस रिश्ते में बरकत होगी। वो तो निचोड़ने के बाद उसे चौराहे पे छोड़ देगा, न दुनिया की रहेगी न आखिरत की रहेगी, यहाँ रुसवा होगी, मरने के बाद खरबों साल जहन्नम की आग में जलती रहेगी। आप बताएं कि इस कदर इस्लामी थिंकिंग अगर किसी के सीने में नहीं है, वो कैसे अपने ईमान को बचाएगा? वो इस हुस्न की आंधी में कैसे अपने जिस्म को बचाएगा? इस आंधियों के दरमियान हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को कुछ बताए ना बताए, कम से कम मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत बता दे, आकाए दो जहान सलाम का किरदार बता दे, हुजूर की तालीमात रोजाना 5 मिनट कंपलसरी अपने घर में एक रूटीन बना ले कि 6 से 7 1 घंटा या 6 से 6:30 आधा घंटा, उस आधे घंटे में घर की सारी औरतें सारे मर्द सब एक जगह जमा होंगे। वहां किसी एक्टर क्रिकेटर किसी पॉलिटिकल लीडर की नहीं, वहां सिर्फ सरकार दो जहां की सीरत बयान करे। मैं कसम से कहता हूं अगर रोजाना आधा घंटा या 20 मिनट मुस्तफा को घर में पढ़ा गया, आका की होली लाइफ की स्टडी की गई, तो सरकार दो जहां जिस घर में पढ़े जाए, जिनकी जिंदगी को पढ़ा जाए, जिनकी हदीस जिस घर में हो, बुजुर्गों ने कहा है कि जो अल्लाह से हम कलाम होना चाहता है वो कुरान पढ़े, ऐसा है जैसे रब करीम से बात कर रहा है। और मन कान फी बैतिही मजमूअतुम मिन अहादीस कान फीही नबिय्युन यतकल्लम, जिसके घर में अहादीस का मजमूआ हो, ऐसा है जैसे उसके घर में नबी है जो उनसे बात कर रहे हैं, जैसे मुस्तफा है जो उनसे बात कर रहे हैं, जो रोजाना मुस्तफा की हयात तैयबा का एक चैप्टर अपने बाल बच्चों की गुड्डी में पिला दे, तो बच्चा उसका इंजीनियर बनने के बाद इंजीनियर बाद में रहेगा, मुसलमान पहले रहेगा, डीएम बनने के बाद डीएम बाद में रहेगा, मुसलमान पहले रहेगा। और अगर कोई छोकरी इस ईमान बेचने की शर्त पर अगर वो अपनी जवानी और अपना चेहरा उनको देने का ऑफर करेगी, तो वो डीएम बेटा जिसको बाप ने उनकी गुड्डी में इस्लाम पिला दिया है, वो बोलेगा सारी जिंदगी मैं कुंवारा रह जाऊंगा, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। वो चेहरे पे थूकेगा, मैं ईमान का सौदा नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो एक बाप अपने बेटे को 50 खरब रुपए की जायदाद नहीं दे, एक धूल जमीन नहीं दे, अगर ये इस्लामी सोच दे दिया तो समझ ले दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें उस बच्चे को बाप ने अता फरमा दी। इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है। हदीस है यानी हुजूर कहते हैं कि एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, सबसे कीमती गिफ्ट है बच्चे को दीन अखलाक अदब सिखा देना। इससे बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। मेरी माँ बहन बेटियों के खुद की घुट्टी में उनके घर के जो गार्जियन हैं, यानी जो उनके बाप हैं, जो उनके शौहर हैं, जो उनके जवान बेटे हैं, वो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी के सामने अगर वो रोजाना सिर्फ मकान की बात करेंगे, फला डॉक्टर बना 50 करोड़ की बिल्डिंग बना लिया, तो उसके दिमाग में यही आएगा कि बिल्डिंग बनाने वाला ही आदमी है, और जिसके पास अपना घर नहीं है वो जानवर से बदतर है। अगर उनके सामने हमने ये बयान किया कि फला फिल्म का एक्टर बना, एक फिल्म को साइन करने में 25 करोड़ रुपए लिया, खरबों में खेलता है, एक पांव अमेरिका में एक पांव जर्मनी में है, तो उसके दिमाग में क्या आएगा? जिंदगी का मकसद है पैसा कमाना। अब वो भी नाचने कूदने एक्टर बनने या एक्ट्रेस बनने की कोशिश करेगी। अगर हमने ये कहा कि फला आदमी मुखिया प्रधान बना, 5 साल के अंदर में 5 करोड़ रुपए कमा लिया, हमारे बेटे के जुनून दिमाग में भी मुखिया बनने का जुनून चढ़ जाएगा कि हम भी मुखिया बने, प्रधान बने, पैसा कमा ले। तो हम जिस तरह का क्लाइमेट, जिस तरह का कल्चर अपने घर में बच्चों को देते हैं, उसी तरह की दिमाग साजी होती है, वही फिक्र बच्चों की बनती है। अगर बच्चा आज हमारी छाती पर चढ़ कर के बोले कि फला बाप ने अपने बेटे को 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दिया, तुम बताओ मेरे बाप तुमने मुझको क्या दिया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर बाप हमारे सीने पे चढ़ के बैठ के और ब्लैंक चेक पे, बेटा अगर हम चेक पे साइन करवाए, चेक साइन करो इस पर, जो तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है वो मेरा होगा, साइन करो, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार वही
बाप है, चूंकि उस बाप ने बचपन में बेटों के दिमाग में पैसा डाला, वो पढ़ा करोड़पति बन गया, वो डॉक्टर बना 50 करोड़ कमा लिया, वो इंजीनियर बना 50 करोड़ कमा लिया, वो नेता बना 50 करोड़ कमा लिया। तो हमने उसके साथ ही दिमाग पे क्या लिखा? पढ़ने का मकसद पैसा कमाना, इंजीनियर बनने का मकसद पैसा कमाना। अब इंजीनियर बनने के बाद वो दलाली करे, वो बदमाश हो जाए, वो हरामखोर हो जाए, वो साथ बगैर बिल्डिंग बने हुए बोलते हाँ बिल्डिंग बन गई, कमजोर मसाले को बोले सबसे जबरदस्त मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? वो बाप जिसने बेटे को बताया है इंजीनियर बनने का मकसद पैसा कमाना। तो आज अगर 90% इंजीनियर हरामखोर हो रहे हैं, पैसों का हरीश और लालची, आज अगर 95% डॉक्टर वो हरामखोर गरीबों को नॉर्मल प्रोसीजरिंग करके पैसा ऐंठने वाला बन गया है, तो इसका उसका जिम्मेदार उसका बाप है। ये समाज है जिसने दौलतमंदों को इज्जत दिया, गरीबों को अपमानित किया, जिसने दौलतमंदों की कहानी शौक से घर में बोला, और जिसने अखलाक किरदार वालों को हमेशा डुमरलाइज करने की बात बोली, जिसने अपने घर में बच्चों को बताया मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, मौलाना के चक्कर में पड़ा तो दाढ़ी भी रखवा देगा, जवानी में पंजाबी पहना के बूढ़ा भी बना देगा, कोई बेटी तुमको नहीं देगा, मौलाना के चक्कर में पड़ा सारा पैसा मदरसा के नाम पे, फितरा ज़कात के नाम पे लूट लेगा। तो ये बताएं कि जिस बाप ने बेटे को कहा मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, वरना जवानी में दाढ़ी रखवा के बूढ़ा बना देगा, अब पंजाबी और पायजामा पहनवा के बूढ़ा बना देगा, नमाज पढ़वा के 5 टाइम मस्जिद आने जाने वाला बना के छोड़ देगा, फिर तुम कोई बड़ा काम दुनिया में नहीं कर पाएगा। तो वो बच्चा अगर कल चल के बाप के सीने पे बैठ के कहता है कि तुमने मेरे लिए क्या जमीन, कितनी जमीन छोड़ी है, फला बाप अपने बेटे को 100 एकड़ जमीन छोड़ के मरा है, तुम कितना छोड़ा, ये बताए इसका जिम्मेदार कौन है? अगर बेटा बोले कि फला का बाप अपने बेटे के लिए 50 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस छोड़ के मरा है ताकि उसका बेटा दर की ठोकर न खाए, उनका बेटा बाप की छोड़ी रकम पे राज कर रहा है, ये बताए इसका जिम्मेदार कौन होगा? और वो बाप बच्चा बोलेगा मेरे बाप तुमने मुझको कौन सी गाड़ी दी, कौन सा बंगला दिया, कौन सा बैंक बैलेंस तुमने छोड़ा? अगर वह बाप को 2-4 जूता मारेगा तो इसका 100% जिम्मेदार वही बाप है जिसने अपने बेटे के दिमाग में पैसों की लालच और हवस बचपन ही में बिठा दिया है। अगर वह बाप बचपन में बेटे से कहता मेरे लाल मेरे बेटे ये दुनिया चंद दिन की है, इंजीनियर बन भी जाओगे तो कितने दिन दुनिया में जिंदा रहोगे, अगर डीएम बन भी गए 5 लाख महीना कमाए तो साल में 12-5 60 लाख, 30 साल की नौकरी होगी, 3-4 करोड़ रुपए कमाओगे दुनिया में, और फिर उसके बाद क्या करोगे? बुढ़ापे में मौत का इंतजार, दांत खराब, पेट खराब, आंख खराब, जल सांप घुटने में दर्द, बीमारी में लपटोगे, मौत का इंतजार, फिर चले जाओगे। 100 साल के अंदर ही जिंदगी का खात्मा, चाहे इंजीनियर बने के डॉक्टर बने, आईएएस ऑफिसर बने, मंत्री बने, 100 साल के अंदर ही सबका खात्मा। नहीं देखा आपने? अभी चंद दिन पहले शीला दीक्षित 100 गाड़ी आगे 100 गाड़ी पीछे जाती थी, दिल्ली की सीएम किस कदर बेबसी के साथ मरी, नहीं देखा आपने? अभी हिंदुस्तान इसी बंगाल का साहब वो प्रेसिडेंट जो था, साहब वो क्या प्रणब मुखर्जी कहते हैं, प्रणब दा, फिर वो प्रेसिडेंट बन गया, पहले बरस तक मंत्री रहा, लेकिन नहीं देखा बाथरूम में फिसला, गिरा, कोमा में गया, मर गया। नहीं देखा आपने वो रामविलास पासवान जो साहब मंत्री था, जो डेमोक्रेसी की बात करता था, भाजपा के खिलाफ बोलता था और उसूल की बात करता था, आखिर जमाने में कुर्सी से चिपकने की वजह से उसूल का खून करके भाजपा का साथ दिया, आप बिल्कुल जलील और रुस्वा होके उसके घर में रहा और फिर मंत्री बना रहा, चंद सिक्के कमाया, बेबसी की मौत में दुनिया से चला गया। ये बताएं कुछ जिंदगी का क्या मकसद निकला? जब तक मंत्री है, जब तक डकैत है, जब तक डीएम की कुर्सी पर है, आगे पीछे 100 गाड़ियां जा रही है, मंत्री है, सीएम है, उसी वक्त तक, उसके बाद फिर मौत हुई, चले गए। अब उसके बाद जो दुनिया है इस्लाम कहता है, उसके बाद की जो दुनिया है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। ऐसा नहीं कि वो नहीं है, जैसे ये दुनिया है, मौत हक है, 1000 कोई मरना नहीं चाहे मगर वो मर के रहेगा, 1000 चाहे कभी रात है दिन नहीं आए, सारी दुनिया नाक रगड़ के रहे मगर दिन निकल के रहेगा। उसी तरह कुदरत का कानून है, इस दुनिया के बाद की जो दुनिया है वो एक विशाल दुनिया, एक महान दुनिया। हुजूर कहते हैं तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाले, फिर निकाल के देखे कितनी उंगली में पानी, उंगली में कितना पानी लगा है, चंद कतरे। क्या कहते हैं ये दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसी ही है, आखिरत मिस्र समंदर के है, ये दुनिया चंद कतरे पानी के है। फल यंजुर बिमा का यरजा, देख के
पत्नी कितने पानी को लेके लौटी है? चंद कतरे। इस दुनिया की हैसियत चंद कतरे पानी की है। इस दुनिया में 25 साल पढ़ना, 25 साल जॉब, फिर मौत का इंतजार है। ये दुनिया में ईमान बचा रहा, दुनिया की लज्जतों को हासिल नहीं किया, तो इस अगर वो ईमान बचा रहा, अच्छे अमल करता रहा, मरने के बाद की वो जन्नत जहां दुनिया का सारा गोल्ड अगर सोना बन जाए, वहां की एक धूल के बराबर भी नहीं है। वो सारी नेमतें, सारी राहतें, 70-70 बीवियां, 30-30 मर्दों के बराबर कुव्वत की सलाहियतें, हद्दे निगाह तक सोने चांदी का मकान, सोने की ईंटों से बना घर, मुश्क और कस्तूरी के गारे से जुड़ी हुई ईंटें, और जन्नत की जमीन हीरे जवाहरात की, और फिर वहां 70-70 बीवियां, हूर और गिलमान, हजारों की तादाद में गिलमान, नौकर, वो साहब मोती की तरह चमकते हुए जन्नती बच्चे, नौकर गुलाम, ये सारी राहतें कि आज दुनिया में 1200 करोड़ लोगों की आबादी में अमेज़न कंपनी के मालिक से लेकर चपरासी तक जितने भी खरबपति हैं, उन सबों की दौलतों को जमा करके एक पल्ले में रखा जाए और जन्नत की एक धूल तो धूल का वजन गहरा हो जाएगा। तो अब अगर इसके दिमाग में ये सारी बात डाल दी जाए, वो एक छोकरी क्या, एक नौकरी क्या, एक सोने का घर क्या, वह बोलेगा कि आखिरत की जन्नत जिसके दिमाग में समा गई हो, ये चेहरा, ये नौकरी, ये मामूली सी बात है, क्या उसके नजर में समाएंगी? अगर माँ बाप अपने बच्चे की गुड्डी में पिला दे, डीएम बन जाना मगर जन्नत को मत भूलना, इंजीनियर बन जाना मगर जन्नत को मत भूलना। ये मत भूलना कि दुनिया की जिंदगी आर्जी और टेम्पररी है, आज है कल खत्म। एक पानी का बुलबुला उभरा खत्म हो गया, एक चिंगारी भड़की खत्म हो गई, और हुजूर ने यही पैगाम की तालीमात का निचोड़ ही है। सरकार ने जब भी खिताब किया यही कहा है, जन्नत दायमी चीज है, ये दुनिया टेम्पररी चीज है। सफा पे खुतबा मुस्तफा ने दिया, सफा पहाड़ पे, उसमें भी जन्नत और आखिरत की बात। मस्जिद नबी के मेंबर से खिताब किया, उसमें भी जन्नत और आखिरत की बात। हुजरे आयशा में सरकार ने गुफ्तगू की, उसमें भी जन्नत और आखिरत की बात। सहाबा की मजलिस में सरकार ने बयान दिया, जन्नत और आखिरत की बात। कुरान करीम में 114 सूरतें, सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक, उन सारी सूरतों में आखिरत का चर्चा, क़यामत का चर्चा। किस सूरत को टच कर जिसमें क़यामत का चर्चा ना हो? क़यामत नाम की एक सूरत नहीं, बल्कि इस तमाम सूरतों में क़यामत का चर्चा है। सूरह फातिहा में मालिक यौमुद्दीन, इंसाफ के दिन का मालिक, कुल तेरे बिनास में ले ले, कुल तेरे बिनास में देख ले, कुल वल्लाह अहद में देख ले, सारी सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का इकरार, और यही नेमत काम आने वाली है आखिरत में। बाकी दुनिया की सारी नेमतें छूटी है, पानी की बुलबुली की मानिंद है। हुजूर की हदीसों में देख ले, जन्नत की बात, आखिरत की बात, पुलसरात की बात, वक्त निसा पे कलमा ज़बान पे कैसे जारी हो उसकी बात, कब्र के सवाल जवाब की बात, यानी जो इस्लामी तालीमात का सबसे बड़ा मैटर है, जो केंद्र बिंदु है, जो सेंटर पॉइंट है, उसी पे गुफ्तगू घर में नहीं हो रही है, न घर में हो रही है, न मदरसों में हो रही है, न जलसे में हो रही है, न जुमा के दिन गुफ्तगू हो रही है। वहां बातें दूसरी हो रही है, मगर जो मेन थीम है उसी पे तबसरा नहीं हो रहा है। ये बताएं कि बच्चों के दिमाग में जन्नत की बात कैसे रहेगी, आखिरत की बात कैसे रहेगी, इस्लामियात की बात कैसे रहेगी, अगर हमने बच्चों के दिमाग में शुरू ही से डाला इंजीनियर बनना मगर जन्नती बनके, डॉक्टर बनना जन्नती बनके, हमेशा जन्नत की फिक्र दिमाग में रहे। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप को मोहब्बत से देखने से आज का सवाब मिलता है। चाहे अरबपति क्यों ना बन जाओ, मगर माँ बाप की तरह नेमतें तुझको कहीं नहीं मिल पाएंगी। ये बाप का चेहरा देख तो हज मबरूर का सवाब, ससुर को देखो, साला को देखो, अपनी बीवी को देखो, ये नेमत नहीं मिलेगी जो नेमत बाप के चेहरे को देखने से मिलेगी। माँ की दुआ कबूल हो ना हो इसकी कोई जमानत नहीं, मगर बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है, क्योंकि माँ सॉफ्ट होती है, माँ दुआ ही करना जानती है। बच्चा माँ को मारे तो भी दुआ देती है, मगर बाप जल्दी दुआ नहीं देता है। बाप का दिल जब बच्चा खुश करता है तब बाप के दिल से दुआ निकलती है। इसलिए हुजूर ने फरमाया सलासु दावतिन मुस्तजाबातुन, 3 दुआ हैं जो कबूल होती है, दावतुल वालिद, दावतुल मुसाफिर, दावतुल मजलूम, यानी मजलूम जिस पर जुल्म किया जाए, यानी जिस पर बिला कसूर जुल्म करे उसकी दुआ कबूल होती ही होती है। उसके दरमियान अर्श इलाही के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता, वहां कोई उसका साथ देने वाला ना हो। और अगर वो मजलूम है, जुल्म हुआ है, उसकी फौरी रिएक्शन होगा, यानी जालिम को अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। मजलूम के आह निकली जबान से तो जालिम का सारा खरमन चलकर रखा कस्तर हो जाता है।
اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، اور مسافر کی دعا جب وہ حالت سفر میں ہو دعا قبول ہوتی ہے۔ ماں کی دعا کے بارے میں الگ سے اس طرح کوئی حدیث نہیں آئی ہے۔ ماں کی خدمت باپ سے زیادہ ہے، ماں باپ دونوں بولا ہے، ماں کی بات پہ لبیک کی جائے گی۔ ماں چنے تین طرح کی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ماں نے حمل میں پیٹ میں رکھا ہے، ماں نے اس کو دودھ پلایا ہے، ماں نے اس کی پیدا تکلیف سے اس کو جنی ہے۔ تین خطرناک اسٹیج ہے پیٹ میں رکھنے کا، پیدا کرنے کا اور دودھ پلانے کا، اس لیے ماں کا مقام باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، یعنی 3 گنا زیادہ خدمت میں زیادہ ہے، عزت ماں سے زیادہ باپ کا، چونکہ باپ ماں کا بھی مالک ہے، ہمارا بھی مالک باپ ہے، اور باپ ماں کا بھی مالک ہے۔ جو ماں کا بھی مالک ہو، ماں کا بھی سرتاج ہو، اس کی تعظیم ماں سے زیادہ، اس کا ادب ماں سے زیادہ، اس کا احترام ماں سے زیادہ، اور خدمت باپ سے ماں کی زیادہ، چونکہ ماں کی خدمتیں زیادہ ہے، ماں کی تکلیفیں زیادہ ہے، ماں کا پیار زیادہ ہے، اس لیے خدمت زیادہ ماں کی اور احترام زیادہ باپ کا۔ اس کا مطلب ہے دونوں کو جو خوش رکھے گا اس سے خدا بھی خوش ہوگا، مصطفیٰ بھی خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سچی خوشی عطا کرے گا۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹوں کی گھٹی میں اسلام پلائیں، اسلام سکھائیں، سرکار کی محبت پلائیں، اور وہ بتاتے کہ جنت کیسی ملتی ہے۔ اگر آپ نے یہ ساری باتیں سکھا دی تو بڑھاپے میں وہ بیٹا چھاتی پر بیٹھ کر نہیں بولے گا کہ فلاں کے باپ نے داڑھی چھوڑی تم نے کیا چھوڑا، نہیں، بچہ بڑھاپے میں باپ کا پاؤں چومے گا اور کہے گا ابو مجھ سے آپ ناراض تو نہیں ہے، امی کی پیشانی کو بوسہ دے گا، بولے گا امی آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، آپ خوش ہو جائیں میرا رب خوش ہوگا، آپ خوش ہو جائیں میرا رب خوش ہوگا۔ تو آپ انجینئر بیٹے کو بنا دیا، ادب نہیں سکھلایا، تو آپ ڈرتے رہیے بیٹا سے کہ بیٹا آ رہا ہے، انجینئر صاحب آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، باپ ڈر کے مارے کانپ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، اب بیٹا کا نام نہیں لے رہا ہے کہ احمد آ رہا نہیں، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، اب بیٹا آیا باپ کھڑا ہو گیا، یعنی بیٹا ڈر رہا ہے باپ سے، باپ ڈر رہا ہے بیٹا سے، باپ ڈر رہا ہے بیٹا سے۔ کیوں ڈر رہا ہے؟ کہ بیٹا ناراض ہو جائے تو میرا کیا بنے گا، بیٹا ناراض ہو جائے تو میرا کیا ہوگا، مجھ کو کون کھلائے گا، کون علاج کرائے گا، کون مجھ کو کپڑے دے گا، کون ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا۔ ایسی تعلیم کیوں تم نے دلوائی کہ اب تم بڑھاپے میں بیٹے سے ڈر رہے ہو؟ ڈاکٹر بابو آ رہے ہیں، انجینئر بابو آ رہے ہیں، IAS آفیسر آ رہے ہیں، ذرا آرام سے چپ سے رہو، بیٹا کے سامنے کھڑے ہیں کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے ورنہ علاج کون کروائے گا۔ اگر تم نے اپنے بیٹے کو عالم بنایا ہوتا، حافظ قرآن بنایا ہوتا، بیٹے کو دین سکھلایا ہوتا، تو وہ بیٹا بڑھاپے میں باپ سے ڈرتا کہیں میری آواز اونچی نہ ہو جائے کہ باپ ناراض ہو جائے، کہیں آواز اونچی نہ ہو کہ ماں ناراض ہو جائے۔ اگر ماں باپ ناراض ہو پاؤں دبا کے چوم کے خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر صرف تم نے دنیا سکھلایا تو بیٹے سے تم کو بڑھاپے میں ڈرنا پڑے گا، اور اگر تم نے دین سکھلایا تو ایسا لال ہوگا جو تیری عزت کرے گا، مرتے وقت تک تم سے ڈرتا اور سہمتا رہے گا۔ نعرے تکبیر، اس لیے اپنے گھر میں بال بچوں کو ادب سکھلائیے تاکہ وہ بیٹا اگر آپ کچھ نہیں چھوڑیں گے تو وہ بیٹا آپ کی قبر پہ جا کے کہے گا الہی میرے باپ کو تو بخش دے جس نے کچھ نہیں دیا مگر ہمارے دل میں اے اللہ تیری محبت تیرے محبوب کی محبت عطا کر دیا۔ اس لیے اپنے بچوں کے دل میں کچھ نہ دیں، دنیا نہ دیں مگر آخرت دے دیں، دین دے دیں۔ اگر آپ کی بیٹی کا ایمان بچا رہا، وہ اپنی جوانی پہ سینے میں صبر کا پتھر باندھ کے غیر مسلموں کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی تو 50 کھرب کی بلڈنگ دینے سے بہتر ہے کہ اپنی بیٹی کو اس طرح ایمان دے دیا جائے۔ اگر ایمانی طاقت ہوگی پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ شیر سامنے سے آ رہا ہے، مصطفیٰ کا صحابی جا رہا ہے، وہ پیشاب نہیں کیا، وہ بھاگا گھبرایا نہیں، شیر کو دیکھا، مصطفیٰ کا غلام کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے ابو الحارث انا مولا رسول اللہ، اے ابو الحارث میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ شیر نے دم ہلا کے مصطفیٰ کے غلام کی غلامی کرتے ہوئے رہنمائی کرنا شروع کر دیا، جب تک بچھڑے ہوئے قافلے کے قریب تک نہیں پہنچا دیا۔ شیر مصطفیٰ کا غلام رہا، وہ طاقتور مصطفیٰ جس کے اشارے پہ ان کے غلام کو شیر اس کی غلامی کرے، جن کے اشارے پہ سورج پلٹ آئے، جن کے اشارے پہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں، اس قدر عظیم طاقتور مصطفیٰ، لیکن سہنا مصطفیٰ کا ایسا لاجواب تھا۔ لوگ راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں، لوگ آپ کی پشت اقدس پر اونٹ کی اوجڑی ڈال رہے ہیں، مصطفیٰ صبر کر رہے ہیں، لوگ سر سے لے کے پاؤں تک پتھروں کی بارش کر کے لہو لہان طائف کی وادی میں کر رہے ہیں، مصطفیٰ تو دعا نہیں کر رہے ہیں، سرکار سہ رہے ہیں۔ میدان احد میں اس قدر
लोगों ने जंग का नक्शा बदला काफिरों ने कि सरकार की ज़बान अक़दस होठ मुबारक सरकार के जख्मी हो गए, दंदान मुबारक शहीद हो गए। यानी इस कदर खुद अंदर आंसू घुसी जिसको निकालने के लिए अब्दुल रहमान इब्न औफ ने अपना दांत दिया, उनके 2 दांत शहीद हो गए। यानी इस कदर दुश्मनों ने खतरनाक वार मैदान उहद में सरकार पे किया। रास्ते में काटे, पुश्ते अक़दस पर उजड़ी, गले में चादर डाल के खींचना, हुजूर के कत्ल का प्लान बनाना मुस्तफा ने सहा है, इतना सहा है कि जब 8 साल के बाद 12,000 का लश्कर जर्रार लेके जब मक्का को फतह किया मुस्तफा ने, तो सामने कौन था जो ऊंट की उजरी डाल के हंसा था? सामने कौन था जो गले में चादर डाला था? सामने कौन था जो कांटे चुन चुन के लाके रास्ते में बिछाया था? सामने कौन था जिसने 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में कबीले बनु हाशिम को सोशल पायकार उसका किया था? सामने कौन लोग थे जिसने मुस्तफा की बेटी पर बर्छी और भाले से हमला करके उनके हमल को गिराया था? सामने कौन थे जिसने मुस्तफा के गुलाम को चटाई में बांध के धुआं देके मारने का प्रयास किया था? सामने कौन थे जिन्होंने खब्बाब को कोयले पर लेटा के इस कदर की चर्बी पिघली कि कोयले की आग बुझ गई, यानी इस कदर अजियतें दी गई? वो मुस्तफा के दुश्मन सामने मौजूद थे। अगर कोई दूसरा शख्स होता नबी की जगह, यूरोप का दानिश्वर, दुनिया भर का राइटर, आज अंगुष्ठ बदलना है, महवे हैरत है, वो कहता इफ एनी अदर मैन वुड इन द प्लेस ऑफ मोहम्मद, अगर कोई दूसरा शख्स मोहम्मद अरबी की जगह होता और उनके सारे इर्द गिर्द इनके खुलखा दुश्मन होते जिसने उनको तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर उठा ना रखी, सारी तकलीफें पहुंचाई, अगर कोई शख्स नबी की जगह होता तो एक एक दुश्मन को चुन चुन के कत्ल कर देता। क्योंकि उस टाइम में ताकत मुस्तफा के पास थी, 12,000 की फौज उनके पास थी, वो सब जो सब तकलीफ खा रहे थे वो सब आज निहत्थे थे, उनकी तलवार जमीन पर थी, वो कांप रहे थे, वो सामने सब खड़े थे मुजरिम की तरह। मुस्तफा एक एक को चुन चुन के कटवा देते अगर कोई मुस्तफा की जगह कोई दूसरा शख्स होता। लेकिन कुर्बान मुस्तफा की सहनशीलता पे, कुर्बान मुस्तफा की सब्र पे, मुस्तफा के तहम्मुल पे, मुस्तफा की ईसा मुस्तफा जान रहमत के सब्र और तहम्मुल कुव्वते बर्दाश्त पर, जो उन्होंने कुव्वते बर्दाश्त से काम लिया है। यानी तकलीफ पे तकलीफ पहुंचाई जा रही है, सब्र पे सब्र की तारीख लिखी जा रही है। हुजूर ने यकतरफा तौर पर ऐलान कर दिया अंतुम तलका इज़हबू, तुम सब जाओ, तुम सबको मैंने आजाद कर दिया। किनको आजाद किया? जान के दुश्मनों को, कत्ल के प्लान बनाने वालों को, लहू लहान करने वालों को, सोशल बायकाट करने वालों को, अपने जानी दुश्मनों को मुस्तफा ने आम माफी का ऐलान किया। माफी का ऐलान करना था, उन घटिया किस्म के काफिरों का सीना हिल के रह गया। मैं तो गाली देता हूँ, ये दुआ देते हैं, मैं पत्थर बरसाता हूँ, ये हम पर दुआ का फूल बरसाते हैं। अब मैं समझ गया कि मुस्तफा अपनी जात के लिए कुछ नहीं, ये सब कुछ करते हैं अपने रब्बुल कदीर के मजहब इस्लाम की बालादस्ती के लिए। अब समझ में आ गई बात, सामने उनके कुफ्र मिट चुका था, गुरूर खत्म हो चुका था, सच्चाई समझ में आ चुकी थी। हुजूर पैगंबर है, ये नबी के अलावा कोई दूसरा ऐसा कर ही नहीं सकता है। आज तक 13 साल में उतने लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा जितने लोगों ने फतेह मक्का के दिन फौज दर फौज मुस्तफा के आम माफी के ऐलान करने की वजह से हुजूर ने सहा। एक तरफा तौर पर उसका रिजल्ट ये निकला कि आज लाखों की तादाद में कलमा पढ़कर मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा हो गया। फौज कलमा पढ़ने लगे, आके सब हुजूर के आगे कलमा पढ़कर हुजूर की गुलामी में दाखिल होने लगे। जो काम तलवार से न हुआ हो, जो काम गन और बंदूक से न हुआ हो, वह काम मुस्तफा के सब्र ने करके दिखला दिया है। हम सहना जानते हैं, हम सब्र करना जानते हैं। मेरे पैगंबर ने सहा है, सब्र किया है। हुजूर को खतरनाक से खतरनाक गालियां दी गई, हुजूर को मजनू कहा गया, हुजूर को पागल कहा गया हुजूर को कोई जिन्नात भूत या आसेब लगा है ये बता दें तो मैं किसी झाड़ फूक करने वाले को बोला खिला के इनको ठीक कर देता हूँ। किनको? जो दुनिया का सबसे बड़ा हसीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद, जो दुनिया का सबसे बड़ा तबीब, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुअल्लिम, जो दुनिया का सबसे बड़ा नफीस तरीन इंसान था, उनके खिलाफ इस तरह की बातें की गई। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला? सहने का रिजल्ट ये निकला। जिस दिन हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया था उस दिन एक बीवी आपकी आप पर ईमान लाई, जनाब खदीजा थी। एक अली आपकी परवरिश में जो था वो आपका चचाजाद भाई ईमान लाया। एक गुलाम जो आपका था, जो बाप के तरके में मिला था, उसने ईमान लाया। और
और एक दोस्त आपका सिद्दीक अकबर थे, उसने ईमान लाया। 3 साल गुजर गए, 40 से ज्यादा लोग नहीं बढ़े। 3 साल का वक्फा कम नहीं होता है, बहुत बड़ा वक्फा होता है। 3 साल में सिर्फ 40 लोग ही ईमान लाए हैं। उसके बाद फिर मुसीबतें बढ़ती गई। मक्का छोड़ के लोग हिजरत करके हबशा गए, हिजरत करके मदीना चले गए। सरकार दो जहां ने जो सब्र किया है, वो 4 लोग कलमा पढ़े थे, हद से हद 3 साल में 40 लोग हुए, और 10 साल के बाद कुछ लोगों का इजाफा हुआ। लेकिन आज 1300 साल के 1450 साल यानी 1443 हिजरी है, और हुजूर ने नबूवत के ऐलान के 13 साल हिजरत किया है। नबूवत से ऐलान से पहले 40 साल 40 इयर्स, नबूवत के ऐलान के बाद 23 इयर्स यानी 23 साल, और 23 साल में 13 इयर्स 13 साल मक्के में, और 10 इयर्स 10 साल मदीने में। ओहद, बदर, खंदक, खैबर, हुनैन, फतेह मक्का, ग़ज़वे तबूक, ये सब हिजरत मदीना के बाद की जंगें हैं। अब मक्का में सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ, मानी मुसीबतें, कैदोबंद की सऊबतें, और मदीना के 10 साल सिर्फ मैदान जंग में। मगर इसी 10 साल के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने वो कारनामा अंजाम दिया कि 13 वो 10 ये 23 साल, और आज हो गए 1443 हिजरी, मिला जुला कर 1500 साल यानी 1500 साल, 15,000 नहीं 1500 साल। अरस्तु की कहानी 3000 BC, ईसा इस्लाम से बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 300 साल पहले, अफलातून का पैदा हुए 2000 साल पहले, फला का पैदा हुए ईसा अलैहिस्सलाम से 300 इयर्स BC यानी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। एक है हिस्ट्री में BC, एक है हिस्ट्री में AD, AD का मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस, और एक है BC बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जो लोग हुए उसको गिनती में BC इतने BC इतने BC, और जो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद पैदा हुए इतने AD इतने AD इतने AD। तो जितने महान लोगों का चर्चा आता है वह सब बिफोर क्राइस्ट है। लेकिन कितने लोग हैं जितने लोगों ने अरस्तु की जिंदगी को सेव किया, अफलातून की जिंदगी को लिखा, एरिस्टोटल को उन्होंने तारीख के पन्ने में जगह दिया, लेकिन 1450 साल के अंदर मुस्तफा जाने रहमत का वो दिन, जिस दिन ऐलान नबूवत के बाद 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, और आज 1500 साल के बाद कमोबेश 150 करोड़ लोग हैं दुनिया में जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद कमर, मोहम्मद समर, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद उस्मान, यानी हर आने वाला दिन पिछले दिन से वो बेहतर दिन आता गया कि 2 करोड़ से 4 करोड़, 4 करोड़ से 25 करोड़, 25 करोड़ से 50 करोड़, 50 से 100 करोड़, 100 करोड़ से 150 करोड़, अभी तखमीनन 150 करोड़ लोग हैं जो नबी की गुलामी का सबूत देते हुए मोहम्मद का नाम अपने नाम के साथ मिला कि मैं मोहम्मदी हूँ, मोहम्मद का गुलाम हूँ। हुजूर ने सहा तो 150 करोड़ की फौज अल्लाह ने उनको अता फरमा दी, और आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का हो रहा हो, यूरोप में तो मुस्तफा का, यूनिवर्सिटी में तो मुस्तफा का, अमेरिका में तो मुस्तफा का, हिंदुस्तान के कॉलेजेस में तो मुस्तफा का, सीरत के जलसे मुस्तफा के नाम पे जितने होते हैं उतना किसी शख्स वाहिद के नाम पर नहीं होते। जिस तरफ देखिए, आला हजरत ने आज से 100 साल पहले बड़ी प्यारी बात कही थी, सरकार कौन आपकी शान घटाएगा, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, काम जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, काम जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। आज आका अलैहिस्सलाम के 150 करोड़ फॉलोवर, ये वो है जो जान हथेली पे लेके जान देने को तैयार है। इसके अलावा वैज्ञानिकों की सूरत में जो कहता है आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद, मैं पूरे आदमी की तारीख में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूँ। कोई कहता है कुरान करीम के आयतों को सुनकर जो चीज हमने आज 1400 साल के बाद एड़ी रगड़ कर 25 साल मेहनतें करके जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, वो बातें मुस्कुराती हुई कुरान में 1400 साल पहले से दुनिया के सामने मौजूद है। जब ये सच्चाई सामने आती है तो मेगाटेक तेजासन, थाईलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, हजारों मंदुबीन के सामने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में उस सेमिनार में कहता है कि जो तहकीक मैंने सबसे पहले किया वो कुरान करीम में बहुत दिनों पहले से मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि हक वहां है, जब हक उजागर हो जाए उसे कबूल कर लेना चाहिए। ये जोकर नरसिंहानंद नहीं बल्कि थाईलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मेगाटेक तेजासन, जिन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया कि दर्द का एहसास चमड़े में
में होता है। जब कुरान की आयत सुनाई गई, उसके पांव की जमीन जैसे खिसक गई हो। वो कहा मुझसे पहले इसको कोई इसकी जानकारी नहीं हासिल किया था। मैं ही पहला इंसान हूं जिसने दुनिया को बताया कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। और कुरान ने फासे तौर पर कहा बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। ये इस बात की दलील है कि दर्द के एहसास का तस्वुर चमड़ा ये कुरान ने 1400 साल पहले से दुनिया के सामने रख दिया है। और जब 1400 साल पहले से ये बात है तो वो कलाम किसी इंसान का नहीं, वह इंसान के खालिक का कलाम है, रब कायनात का कलाम है। रब है, रब हक है, मुस्तफा हक है, इस्लाम हक है, कुरान हक है। तो मेगाटेक पे जैसन ने कहा दुनिया गवाह रहे कि मैं उस हक को कबूल करके मुस्तफा के गुलामों में इजाफा कर रहा हूं, कबूल कर रहा हूं। आई एक्सेप्ट मुस्तफा इज राइट, मुस्तफा इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। कौन कहता है ये दो चार लुच्चे लफंगे नापाकों के ऑल फॉल बकने से कहीं इस सूरज का उसकी रोशनी में कोई फर्क आने वाला है? नहीं नहीं, कोई हजार आदमी मिलकर थूके सूरज पे कि सूरज की रोशनी को मैं मंदमल कर दूंगा, नहीं होगा। अपना ही चेहरा खराब होगा। वसीम हाफिजी का चेहरा खराब हुआ और ये पंडित का चेहरा खराब हुआ। जिसने भी नबी को निशाने तनकीद बनाया वो जहन्नम की आग में तो वहां जलेगा, यही वो रुस्वा और जलील हो गया। और जिसने मुस्तफ़ा की अजमत का डंका बजाने का बीड़ा उठाया, या नबी कहता रहा, हुजूर पे होने वाले हमलों का दिफा किया, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की तहरीक छेड़ दी और डंका बजाया। जिन्होंने 2 घंटे रोजाना सोया, जिन्होंने मोटा झोटा पहना, जिन्होंने सूखी रोटी खाया, जिन्होंने 67 साल की सारी जिंदगी मुस्तफ़ा की अजमत के डंके बजाने में गुजार दिया। 1000 नहीं 1400 के करीब किताबें लिखकर इस इस्लाम पर, उस खवा की जात पर, कुरान पर होने वाले हमलों का डिफेंस का दिफा किया। जिसने भी मसले के अहले सुन्नत व जमात पे हमला किया उसके लिए उनके कलम का तेवर खतरनाक हुआ। सीना सपर कर दिया, ढाल बना दिया, सारे हमलों को सीने पे रोका। उनके कलम की तलवार ने इस अदू के सीने में वो खार किया। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में खार है, किसे चाराजोई का वार है, ये वार से पार है। जिस रजा ने मुस्तफा की अजमत का डंका बजाया, 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर इस्लाम और सुन्नियत पर होने वाले हमलों का जवाब दिया। वहां गलथोथरी बकवास नहीं, वहां सिर्फ दलाइल है, आर्ग्यूमेंट है। इल्म गैब पे हमला हुआ। 8 घंटे की तो नशिस्त में खाने काबा की चौखट पर बैठकर अतौलत मक्किया अरबी जबान में इल्म गैब पर एक मुकम्मल दस्तावेज, एक शानदार हथियार कौम के हवाले किया। लोग कहते हैं कि जिसने ईद मिलादुन नबी है, रजा का क्यों नाम होता है? जो गौसे आजम की 11वीं है, रजा का क्यों नाम होता है? छठी गरीब नवाज की है, रजा का नाम क्यों होता है? रजा का नाम इसलिए होगा, गरीब नवाज की अजमत को बचाने वाला योद्धा अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी, गौसे आजम के नामूस पे हमले होने वाले हमलों का जवाब देने वाला अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी, सरकार दो जहां के नामूस पर हमला करने वालों का जवाब देने वाला इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी। आज इल्म गैब पे मुनाज़रा हो, किताब अजमेर से नहीं आएगी, किताब महरेरा से नहीं आएगी, किताब दिल्ली के 22 ख्वाजाओं की चौखट से नहीं आएगी। अगर किताब मुनाज़रा जिताने वाला हथियार किताब की सूरत में अगर आएगा तो अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी का आएगा। तो जिनके आर्म्स से जंग जीता जाएगा, डंका उसी का बजेगा, नाम उसी का होगा। तो जब तक ये बदमज़हब रहेंगे और अहमद रजा की किताब से इन बदमज़हबों की कमर तोड़ी जाएगी, चाहे अमेरिका हो या मलेशिया, उन जगहों पे रजा के नाम का ही डंका बजेगा। तो जिस रजा ने सारी जिंदगी मुस्तफा की अजमत का डंका बजाया, आज सारे आलम में उस रजा का डंका बज रहा है। क्योंकि कानून है जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा। जब अल्लाह उसकी मदद करेगा, जमीन से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देगा। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, अमेरिका, यूरोप, हालैंड, नॉर्वे, जर्मनी, कनाडा, कहां नहीं है जहां रजा के नाम पे मदरसा रज़विया ना हो, रजा जामा मस्जिद ना हो, रजा नाम उसके नाम के साथ न मिला हो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कह दिया था कि लगता है पूरी दुनिया में वादी रजा की तो हिमालय रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे